ہاں بولو، خیریت ہے؟ کیسے کال کی؟ 2 منٹ پہلے وہ سینٹرل جیل سے پولیس اسٹیشن آ کر بیٹھا تھا، تبھی اس کے موبائل کی اسکرین پر حرم کا نمبر چمکانے لگا۔ بہرام مصروف انداز میں کال ریسیو کرتا ہوا بولا، شاید آپ ابھی بزی ہیں، میں بعد میں کال کر لیتی ہوں۔ کال کرتے وقت بھی حرم یہی سوچ رہی تھی کہ بہرام اس وقت بزی نہ ہو، مگر اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی بزی ہے، اس لیے حرم بولتی ہوئی کال کاٹنے لگی۔ بزی تو ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ تم بات کرنا چاہ رہی ہو تو تمہارے لیے وقت نہ نکال سکتا ہوں۔ ہاں، اگر آدھا گھنٹہ پہلے تم فون کرتی تو شاید میں پھر بھی تم سے بات نہ کر پاتا، بہرام نے بولتے ہوئے گویا اس پہ احسان جتاتے ہوئے اسے خود سے بات کرنے پر پرمیشن دی۔ صرف میرے اکیلے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کال رکھ رہی ہوں، حرم بے دلی سے شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ بہرام پرسوں صبح اسے اس کے چچا کے گھر چھوڑ کر گیا تھا، 2 دن سے اس نے نہ تو بہرام کا چہرہ دیکھا تھا، نہ آواز سنی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے باوجود اسے بار بار بہرام کا خیال آ رہا تھا، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بہرام کو کال ملائی تھی، مگر کال ملاتے وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانا ان دونوں میں بہرام نے اس کو یاد بھی کیا تھا کہ نہیں، مگر بہرام کی بے نیازی دیکھ کر اس کا دل اداس ہو گیا۔ تمہاری چاہت تمہاری مرضی تو میٹر کرتی ہے ہمارے رشتے میں لڑکی، اسے اسپیکر سے بہرام کی آواز سنائی دی تو حرم اپنے موبائل کو ڈھونڈنے لگی، پھر کان سے لگا کر بولی، اس بات کا مطلب اس کی بات حرم کے سر سے گزر گئی تھی، اس وجہ سے بہرام سے اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگی۔ تمہیں اگر مطلب کی باتیں سمجھانے پر آ گیا تو سارا وقت میرا اسی چکر میں گزر جائے گا، اور مطلب کی باتیں تب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میرے مطلب کی باتوں کو اتنا سنجیدہ مت لیا کرو، بس خوش رہا کرو۔ بہرام کی باتوں پھر سے اچھی خاصی کنفیوز ہو چکی تھی، اس لیے بولی، بہت مشکل باتیں کرتے ہیں آپ، میرا ننھا سا جان آپ کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حرم بے چارگی سے بولی تو اسے بہرام کے مسکرانے کی آواز سنائی دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ساری باتیں خود ہی سمجھ جاتا ہے، پریشان مت ہوا کرو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی، اور یہ تمہاری آواز کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے، کیا فلو ہو گیا ہے تمہیں؟ بہرام کے یوں اچانک پوچھنے پر حرم دنگ رہ گئی، وہ کتنے آرام سے جان گیا تھا اس کو فلو ہو گیا تھا۔ اب حرم اسے کیا بتاتی کہ اس کی آمد پر نصرت چچی نے دھونے والے کپڑوں کا ڈھیر جمع کر کے رکھا تھا، اس نے کل بھی کپڑے دھوتے اور آج بھی بیڈ شیٹس اور تکیوں کے خلاف اور کشنز کے لیے مشین لگائی تھی، جس کی وجہ سے اس کو فلو ہو چکا تھا۔ موسمی نزلہ زکام تو چلتا رہتا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتائیے آدھے گھنٹے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، کہاں بزی تھے؟ حرم نے بہرام کی توجہ اپنے زکام سے ہٹانے کی غرض سے اس سے سوال پوچھ لیا۔ سینٹرل جیل گیا تھا، 2 قیدیوں نے پچھلے 10 دن سے جیل کا ماحول کافی زیادہ خراب کیا تھا، ان دونوں کو سمجھا کر آ رہا ہوں کہ جیل میں کس قاعدے سے انہیں رہنا ہے۔ بہرام ریلیکس انداز میں حرم سے بات کر رہا تھا تو حوالدار کے آنے پر بہرام نے حرم کو ہولڈ کرنے کے لیے کہا، اے سی پی صاحب، جن 2 قیدیوں کو آپ تھوڑی دیر پہلے مرمت کر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک قیدی کی ہاتھ کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، دوسرے کے سر سے ہونے والی بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے۔ انسپکٹر مہران کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے، آپ کی پرمیشن چاہیے، اس پرچے پہ سائن کر دیں آپ۔ حوالدار کی آواز حرم کے کانوں میں پڑی تو خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی۔ ہیلو، کیا ہوا، کیا تم سو تو نہیں گئی؟ بہرام نے پرچے پہ سائن کرنے کے بعد دوبارہ حرم کو مخاطب کیا، کیا آپ کو ان دونوں کو مارتے وقت ان پہ بالکل ترس نہ آیا؟ مطلب یہ آپ ایک آدمی کی ہڈی توڑ کر اور دوسرے آدمی کا سر کھول کر آ رہے ہیں، اور مجھے اس وقت کس قدر ریلیکس موڈ میں بات کر رہے ہیں؟ حرم افسوس کرتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ میرا پیشہ مجھے ایسے لوگوں پہ ترس کھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ حرم کو عام سے انداز میں سمجھاتا ہوا بولا، جبھی تو میں آپ کو بالکل صحیح بے رحم بولتی ہوں۔ بے ساختہ حرم کے منہ سے نکلا تو دونوں طرف موبائل پر خاموشی چھا گئی، جسے چند سیکنڈ بعد بہرام کی آواز نے توڑا، کیا میں تمہارے لیے بھی بے رحم ثابت ہوا؟ بہرام خاموشی توڑتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا، یہ بات تو آپ کبھی خود اپنے آپ سے تنہائی میں پوچھے گا کہ آپ کو جواب مل جائے گا اپنے سوال کا۔ حرم کے بولنے پر وہ بے ساختہ بولا، تم تو چاہتی ہو کہ میں تنہائی میں تمہاری ذات کے متعلق سوچوں، تمہیں سوچتے سوچتے مجھے تم سے محبت ہو جائے؟ بہرام کے پوچھنے پہ حرم ایک دم بولی، اگر میں آپ سے بولوں ہاں تو کیا آپ تنہائی میں مجھے سوچیں گے، مجھ سے محبت کریں گے؟ بہرام معلوم نہیں موبائل پہ کیسے حرم اس سے یہ بات پوچھ بیٹھی، روبرو تو وہ بہرام کے سامنے ایسا کچھ بولتے ہوئے بھی لاکھ بار سوچتی۔ گھر واپس کب آنا ہے تمہیں؟ اپنی بات کے جواب میں بہرام کی بات سن کر وہ اداسی سے مسکرائی، یاد تو میری بالکل بھی نہیں آئی ہوگی آپ کو، تو پھر واپس گھر آنے کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حرم کی بات سن کر وہ ایک بار پھر ضبط سے لب بھیج گیا۔
मेरा टफ़ और बिज़ी शेड्यूल तुम्हें याद करने की इजाज़त नहीं देता। कल ड्राइवर भेज दूँगा, उसके साथ वापस आ जाना। बहराम ने जैसे बात को निपटाता हुआ सपाट लहजे में बोला, ठीक है मैं वापस आ जाती हूँ, लेकिन ड्राइवर को मत भेजिएगा। आप खुद मुझे कल शाम में लेने के लिए आ जाएँ। दरअसल चचा जान चाहते हैं कल रात का डिनर आप यहीं पर करें। वो चाहकर भी इसकी तरह का लहजा ना अपना सकी और अपने चचा का मैसेज देती हुई बहराम से बोली, खाने वाले का चक्कर पालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकूँगा। तुम खुद अपने चचा चाची को समझा देना, इस तरह की डिनर पार्टीज़ का मैं आती नहीं हूँ। ड्राइवर तुम्हें शाम में लेने आ जाएगा तो इसके साथ घर आ जाना। बहराम ने बोलते हुए आगे से हरम की बात सुनने की ज़हमत नहीं को और कॉल काट दी। बहराम को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो अपने रवैये और बातों लहजे से उसके मासूम दिल को दोबारा तोड़ चुका था। मगर वो भी क्या करता, आखिर वो क्यों चाह रही थी कि वो उसको सोचे, इससे मोहब्बत करे। आखिर कैसे वो इतनी इतनी वो खुद को अपने दिल को इससे मोहब्बत करने के लिए आमादा करता। बहराम ना चाहते होने के बावजूद हरम को सोचने लगा। फिर अपनी सोचों को झटक कर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसके मोबाइल पर हरम का टेक्स्ट आया, जिसे ना चाहते हुए पढ़ने लगा। आपने खुद ही मुझसे कहा था मेरी चाहत मेरी मर्ज़ी में एंटर करती है, तो फिर क्यों अपनी बात से खुद ही मुकर गए हैं। मैंने आपको अपनी मर्ज़ी बता दी कि मैं आपसे आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, मगर शायद आप दोबारा मोहब्बत करने से डरते हैं। इसके बाद अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज आपने बता दिया मेरी बेज़रूरत सी ज़ात आपके सामने इतनी भी मायने नहीं रखती कि मैं आपसे कुछ मनवा सकूँ। आखिरी बात, कल आपको अपना ड्राइवर भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं चचा के साथ खुद आ जाऊँगी। हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाज़ी, तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। हरम का मैसेज पढ़ने के बाद बहराम ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। चाहने के बावजूद इसका किसी दूसरे काम में दिल नहीं लग सका, सिर्फ एक बेज़र सी ज़ात को सोचने के सिवा। सर, आपके ऑर्डर पर एएसपी बहराम अब्बासी की बीवी के बारे में तमाम मालूमात बमा उसकी तस्वीर के साथ इकट्ठा करके आपके पास लेकर आया हूँ। याकूब नियाज़ी के आदमी ने बोलने के साथ खाकी रंग लिफाफा याकूब नियाज़ी को थमाया तो याकूब नियाज़ी इसमें से तस्वीर निकाल कर देखने लगा, जिसे देखकर इसका अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ। एक तो तुम नए आने वालों का यही मसला है, कोई काम तो तुम ढंग से करते नहीं हो। ये एसपी की दूसरी बीवी की नहीं है, बल्कि पहली बीवी की तस्वीर है, जो वो 2 माह पहले ही मर चुकी है। याकूब नियाज़ी ने अपने आदमी को झड़कते हुए कहा, गुस्से में हाथ में मौजूद तस्वीरें भी फर्श पे फेंक दी। उसे भला इस मरी हुई लड़की में क्या दिलचस्पी हो सकती है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। इसे तो एएसपी की नई बीवी चाहिए थी, वो भी अपने बिस्तर पे, ताकि वो बहराम अब्बासी को अज़ियत में दे सके और साथ ही अपने भाई का भी उससे पता लगा सके। सर, ये लड़की कैसे मर सकती है? मैंने 2 दिन पहले इसे एएसपी बहराम बहराम के साथ उसकी गाड़ी में देखा था। ये एएसपी की पहली नहीं दूसरी बीवी है। माफ़ कीजिएगा, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी होगी। ये देखिए, मैं इस लड़की की पूरी मालूमात लेकर आया हूँ। याकूब नियाज़ी का आदमी अपने मोबाइल में जमा मालूमात याकूब नियाज़ी को बताने लगा, जिस पर याकूब नियाज़ी हैरत में डूब गया। एक ही शक्ल की 2 लड़कियाँ और दोनों ही एएसपी की बीवियाँ, ये क्या माजरा! अब तो इस मामले की तह तक जाना होगा। ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके मौका मिलते इसकी बीवी को उठाकर मेरे फार्म हाउस पे ले आओ। याकूब नियाज़ी अपने आदमी को हुक्म देता उसे वापस जाने का इशारा करने लगा, क्योंकि इसकी बीवी इसके दोनों बच्चों के साथ वापस घर आने वाली थी और वो अपने बच्चे समेत अपनी बीवी को अपने किसी भी बुरे कारनामों की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। इसे ज़रा भी यकीन नहीं था कि बहराम दूसरे दिन इसके चचा के घर आ जाएगा। वो बहराम की यूँ अचानक आमद पर बेहद खुश थी। बहराम उसको खुश देखकर मुस्कुरा दिया। अपने ससुराल में आज इसकी पहली बार आमद हुई थी, इसलिए हरम के चचा और चाची ने उसका भरपूर तरीके से मुस्तकबाल किया। हरम की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। बहराम सोफे पर बैठा उससे चचा और चची से बातें कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र हरम पर उठती, तब हरम को एहसास हुआ उसने अभी तक कपड़े तब्दील नहीं किए थे। आज इसके चचा चाची ने खाने पर बहराम के अलावा अपने दामाद और बेटी यानी अज़्ज़त और निकी को भी बुलाया था, इसलिए हरम सुबह से ही घर की सफाई खाने बनाने के चक्करों में ख्वार हो रही थी। इसने सरसरी इसी अंदाज में ये बात पहले चचा चाची के कानों में डाल दी थी कि वो दोनों बहराम के सामने असद से उसकी मंगनी वाली बात से ग्रेज करें। वैसे भी उसके चचा चाची ऐसी बातों और मामलों की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते थे और उसको मुकम्मल तौर पर यकीन था वो दोनों बहराम के सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बिगाड़ का सबब बने। बेशक उन दोनों को इससे मोहब्बत या लगाव उसकी नोयत का ना हो, मगर वो दोनों नहीं चाहते होंगे कि इसके साथ और बहराम के बीच के ताल्लुकात ख़राब हों। हरम वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आ गए ताकि कपड़े चेंज करके अपना हुलिया दुरुस्त करे। वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से दोबारा कमरे में वापस आई तो इसने बहराम को कमरे में मौजूद पाया। बेड पे रखा हुआ दुपट्टा उड़ती हुई वो बहराम को देखने लगी। शुक्रिया, आपने मेरी बात का मान रखा और आप यहाँ आ गए। दूसरी सारी बातों को नज़रअंदाज करके वो हल्के अंदाज में बहराम का शुक्रिया अदा करती हुई बोली तो बहराम मुस्कुराकर चलता हुआ हरम के करीब आया। शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी यहाँ आमद की वजह यही है कि एक लड़की को ये बताना ज़रूरी था
कि मैं उसके मामले में इतना भी बेरहम नहीं हूँ जितना वो समझ बैठी है। बहराम हरम का चेहरा देखता हुआ उससे बोला तो हरम भी खामोशी से बहराम को देखने लगी। अपनी बात मुकम्मल करने पर बहराम ने हरम का हाथ थामा तो हैरत ज़दा सी खौफ की कैफियत में बहराम को देखने लगी। मैं इसको मानता हूँ कि हमारी शादी के पहले दिन से मैंने जो रवैया तुम्हारे साथ रखा बिल्कुल गलत था। अपने रवैये से मैं तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा चुका हूँ। अगर तुम एंजल की हम शक्ल नहीं होती तो शायद हालात इससे मुख्तलिफ होते। अगर तुम मेरी जगह खड़ी होकर देखो तो शायद तुम मेरी कैफियत को गौर कर सको। लेकिन ये भी सच है कि मेरे लिए तुम्हारी ज़ात बेज़र ये बेईमानी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि तुम एक साफ़ दिल की लड़की हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ हरम। एक हादसे ने मेरे अंदर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बेअतबारी भर दी है। मैं इस बेअतबारी को अपने अंदर से ख़त्म करके यहाँ तुम्हारे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मगर ऐसा फ़ौरी तौर पे तो मुमकिन नहीं। अपने दिल और दिमाग को समझाने और मनाने में मुझे थोड़ा वक़्त लगेगा। हरम, तुम मुझे थोड़ा-सा वक़्त दोगी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हम दोनों के बीच फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल शा कल शाम को हरम की बातों को सोचकर उसका मैसेज पढ़कर फिर कुछ भी बहराम से सोचा न गया। वो जिस नतीजे पे पहुंचा इसी वक्त हरम के सामने खड़ा सब उससे कह रहा था। बहराम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरम को तो यकीन ना आया कि ये सब कुछ बहराम उससे कह रहा है। हरम को लगा कि वो अभी इस हसीन ख्वाब से जाग जाएगी। आपके मुँह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है बहराम। आप मुझे ये लड़की कहने के बजाय हरम ही कहकर पुकारा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज उसके शौहर ने उसका नाम भी तो अपने नाम से पहली बार लिया था। वो खुश ना होती तो उसकी ज़ात उसके शौहर के लिए मायने रखती थी। हरम मुस्कुराकर बहराम को देखने लगी। बहराम हरम की बात सुनकर खुद भी मुस्कुराती और हरम बहराम की मुस्कुराहट को गौर से देखने लगी, जो उसके चेहरे पे काफ़ी अच्छी लगती थी। वो हरम का हाथ थामे उसे वही डायमंड की रिंग पहनाने लगा जो उसने मुँह दिखाई में दी थी, जिसकी को डिबिया खोलकर हरम ने देखने की ज़हमत नहीं की थी, बल्कि वैसे ही दराज में रख दी। आज वो अपने हाथ की उँगली में पहनी हुई वही डायमंड की रिंग देखकर बहुत खुश थी। तो तुम यहाँ अपनी तबीयत को देखते हुए आराम करने के बजाय कपड़े धोने खाना बनाने आई थी। मेरा हल्के से अंदाज में इस पर तंज करता हुआ बोला। जब तक वो उसकी चच्ची के बाद बैठा रहा था तब वो हरम के गुन गाकर परसों से उसके किए गए सारे कामों का बता रही थी। बहराम की बात पर हरम को घूर कर इसे देखने लगी। चच्ची अकेला इतना सब कैसे कर सकती हैं? इनकी उम्र थोड़ी रही है सब काम करने की। अच्छा, आप ऐसा करें, ड्राइंग रूम में जाकर बैठे, शायद निक्की और अक्षत भाई आ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाहर आवाज़ों से महसूस होता है कि निक्की और सच आ चुके थे। तभी अरहम बहराम से बोली, मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम मुझे वैसे ही शर्मा कर दिखाओ जैसे तुम मुझे देखकर अक्सर शर्मा जाती हो। बहराम को चंद दिन पहले वो दिन याद आया जब उसे बगैर शर्ट के देखकर वो शर्मा रही थी। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए हरम से फरमाइश कर डाली, ऐसे कैसे खुद से कोई शर्मा सकता है? आप भी अजीब सी बातें करते हैं। बहराम की बात पर हरम मजीद आंखें फैलाकर उसने हंसती ही हुई बोली, ये भी ठीक बोला तुमने, कोई बिला वजह कैसे खुद से शर्मा सकता है? शर्माने का कोई जवाब तो होना चाहिए। बहराम ने बोलते अचानक हरम को थामकर उसके गाल पर अपने होंठ रखे। यूँ अचानक बहराम की कार्रवाई पर वो बुरी तरह बौखला गई। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, कोई भी अंदर आ सकता था। हरम ने सोचते हुए बहराम को पीछे धकेलना चाहा, मगर बहराम खुद ही पीछे हुआ। हाँ, हरम बहराम की हरकत पर उसे हैरत से देखने लगी। ये आज बहराम ने उसके साथ क्या किया था? सोचते ही हरम के चेहरे का रंग बदलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गुलाबी होता सुर्ख पड़ गया। बहराम बहुत गौर से उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। हरम के चेहरे का रंग बदलता देखा वो मुस्कुराता हुआ कमरे से चला गया। कैसी हो निकी? हरम तैयार होकर ड्राइंग रूम में आई, जहाँ सभी मौजूद बातें कर रहे थे। वो असद को सलाम करके निकी की तरफ बढ़ती हुई उसका हाल पूछने लगी, तुम्हारे मंगेतर से शादी करके कैसी हो सकती हूँ मैं? किस्मत फूट चुकी है मेरी। निकी की बात पर ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया, जहाँ इस असद के साथ चचा चच्ची भी शर्मिंदा हुए। वहीं निकी की बात पर हरम सन्नाटे में आ गई, जबकि बहराम के चेहरे पर एक पल के लिए हैरत का तासुरात उभरे, जो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में ढलने लगे। ये इंकशाफ उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसकी बीवी अपने खालाजाद की मंगेतर रह चुकी थी। हरम के बारे में सब मालूमात करवाते वक्त भी इतनी अहम बात उसको ना मालूम हो सकी थी। निकी, तुम होश में तो हो क्या? ओल फोल पक रही हो। कमरे में हो जाने वाली खामोशी को सबसे नुसरत ने तोड़ा और निकी को इस तरह बोलने पर उसको सबके सामने डांटती हुई बोली, मुझे क्यों डांट रही है? देखा नहीं आपने इसको कैसे खुश होकर मुझसे मेरा हाल पूछ रही है? जानती नहीं हूँ मैं इसकी खुशी की वजह, मुझे नाखुश देखकर ये किस कदर खुश है। एक बार फिर निकी नुसरत को देखकर बोली तो नुसरत ने अपनी बेटी की चलती हुई ज़बान को देखकर अपना सर पकड़ लिया। अब उसकी ज़बान दराजी से सभी अभी परेशान हो चुकी थी और पछता रही थी कि क्यों उसने हरम का रिश्ता अपने बेटे से ख़त्म करके ऐसी बदज़बान लड़की को अपनी बहू बना लिया। बहुत हो गया निकी, अब खामोश कर जाओ। अब की बार असद खामोश नहीं रहा और वो निकी को आहिस्ता आवाज़ में समझाता हुआ बोला। हरम सदमे की कैफियत में वहीं बहराम के चेहरे के उतार चढ़ाव के तासुरात देख रही थी। हाँ हाँ, आप क्यों नहीं बोलेंगे इसकी हिमायत में? अभी तक इसके इश्क का भूत जो नहीं उतरा।
अम्मा अब्बा मैंने आप दोनों को पहले भी मना किया था, जब यहाँ आया करें तो हमें नहीं बुलाया करें। आप पूरा एक वक्त एक शख्स गमगीन चेहरे लिए उसकी यादों का शोक मनाता रहेगा। निग्गी जो ना जाने कब से भरी हुई बैठी थी, आज फटते हुए उसने हरम की शौहर का भी लिहाज नहीं किया। निग्गी की बात पर असद बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। जबकि बहराम की बस हो गई, वो एकदम सोफे से उठा। घर चलो, नगावार नगावार तासुरात चेहरे पर सजा के बहराम हरम को देख कर बोला, जबकि चचा ने निग्गी को पूरी तरह डांटना शुरू कर दिया। बहराम हरम का इंतजार किए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। बेटा, इसकी बात को महसूस मत करना, मेरी बेटी बहुत मगल है। माहौल माहौल ऐसा नहीं रहा कोई इन दोनों को रोकता। नुसरत चची कमरे से निकलकर बहराम के पीछे आती हुई बोली, मगर बहराम उनकी बात की जवाब में खामोशी से घर से निकलकर गाड़ी में बैठ गया। हरम गाड़ी में बैठते ही बहराम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कार ड्राइव करते वक्त हरम ने बस एक बार नज़र बहराम के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे के तासुरात काफ़ी सख्त और पथरीले थे, जिसकी वजह से हरम ने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। फ्लैट के अंदर आने के बाद बहराम ने बेडरूम में जाने की बजाय दूसरे कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि हरम बेड पर आकर बैठ गई। इस वक्त घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, मगर बहराम अभी तक दूसरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठा था। हरम हिम्मत करती हुई बेडरूम से उठकर बहराम के पास दूसरे कमरे में गई। हरम ने आहिस्तेगी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे सामने सोफे पर बहराम बैठा हुआ नजर आया। हर आहिस्तेगी से कदम उठाती बहराम के पास चलती हुई वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी। कमरे में किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास से बहराम ने अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़ी हरम को देखने लगा। सोई नहीं तुम अभी तक? जाओ, जाकर सो जाओ। बहराम अपने सामने खामोश खड़ी हरम को देखकर बोला। उसका लहजा किसी भी एहसास से आ रही था। और आप यहाँ बैठकर मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचते रहेंगे सारी रात? हरम नरमी से बोलती हुई बहराम से पूछने लगी, जिस पर बहराम के माथे पर शकन उभरी। ए लड़की, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, बोला ना जाओ यहाँ से, जाकर सो जाओ। बहराम कुदरे लहजे में इसको डांटता हुआ बोलता, उसके लहजे में दोबारा अजनबियत महसूस करके हरम की आंखें नम होने लगी। हरम से दोबारा लड़की हो गई मैं आपके लिए, बस इतना ही कम एतबार किया आपने मेरी ज़ात पर बहराम। हरम बोलती हुई चलकर मजीद बहराम के करीब आई तो बहराम सोफे पर सीधा होकर बैठा। समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ मैं? जाओ यहाँ से। बहराम दोबारा उसे सख्त लहजे में मुखातिब हो तो हरम नफ़ी में सर हिलाती बोली, यही सोच रहे होंगे ना कि आपके दूसरी शादी भी आपकी ऐसी लड़की से हो गई जो पहले से मंगनीशुदा थी। यकीनन अपने मंगेतर से बातें मुलाकातें करके अब वो आपके पल्ले से बन गई है, जिसे उसका मंगेतर अब तक उसको सोचता है। वैसे शायद आपकी बीवी के दिल में भी अपने मंगेतर के ख्यालात आते होंगे। हरम की बातें बहराम से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो उसका नाम पुकार कर चीख पड़ा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। बहराम के गुस्से में बोलने की परवाह किए बगैर वो बहराम के सामने नीचे फर्श पर बैठ गई। असद भाई, इससे अम्मी अब्बू ने मेरी मंगनी तब करवाई थी जब मैं मैट्रिक में थी। शुरू से ही इन्हें अपने कज़न के रूप में देखा, मगर मंगनी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सोच बदलने लगी। इसमें मेरा कसूर मेरा नहीं, ऐसा हर आम इंसान के साथ होता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी खुद को आगे नहीं बढ़ने दिया, ना ही हकीकतन ना ही ख्यालात में, क्योंकि मंगनी कोई मजबूत बंधन नहीं होती। मेरी तरफ से कोई लेकर असद भाई ने भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाई। यूँ समझ लिए हमेशा हम दोनों के दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम रहा। मंगनी से पहले भी कभी उन्होंने अपनी पसंदगी का इज़हार मेरे सामने नहीं किया था, और मंगनी होने जाने के बाद भी वो एक मंगेतर के बजाय कज़न की तरह ही मुझसे मिलते रहे। हम दोनों के दरमियान कभी भी बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू नहीं हुई, जिसे हर मंगेतर के बीच में होती है। फिर अचानक अम्मी अब्बू दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए थे। तब चचा चची मुझे अपने साथ अपने घर ले आए थे। असद भाई या खाला में से किसी से कोई एक बार भी महीने में मुझसे मिलने आ जाता, लेकिन फिर बीच में मालूम नहीं क्या निकी न जाने कैसे असद भाई को कबूल पसंद करने लगी। मैं निकी के ख़यालात जानकर डर गई। माँ बाप तो मेरे पास थे ही नहीं, सिर्फ माँ बाप का तहिया किया रिश्ता था। मेरा बहुत गुस्सा आया निकी की सोच पर, लेकिन जब नुसरत चची ने मेरे सामने रोकर ये कहा कि असद के सामने मैं खुद अपने मुँह से इस रिश्ते से इनकार करती तो मेरा बहुत दिल दुखा। मगर चची के एहसान याद आ गए जब उन्होंने मुझसे बेसहारा को अपने घर रख दिया था। वो अपने इस एहसास का बदला असद भाई से रिश्ता ख़त्म करने की सूरत से चाहती थी, फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। रिश्ता ख़त्म होने पर मैंने ख़ुद को बहुत अकेला महसूस किया। अम्मी अब्बू भी उस दिन बहुत याद आए, मगर असद भाई से दिल वाबस्तगी की यह इस हद तक नहीं थी कि मैं ताउम्र इस मंगनी का रूप दिल में पाल कर बैठ जाती। मेरा खुदा इस बात का गवाह है, बहराम के नगी से उनकी शादी होने से पहले ही मैं उनसे शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी थी। आपसे निकाह होने पर आपका साथ मैंने मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से कबूल किया था। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर और कुछ भी अहम नहीं है। बहराम
बहराम, आज के दिन जब आपने मुझसे कहा कि आप मेरा यकीन यकीन करना चाहते हैं, उस वक्त मुझे आपका कितना मोतबर लग रहा था, ये मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती। बहराम प्लीज़ अपना यकीन मेरे ऊपर से ख़त्म करके मुझे दोबारा से बेमौल मत कीजिएगा। मेरे दिल में सिर्फ़ आपकी मोहब्बत है, क्योंकि आप शौहर हैं मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़कर। आपके निकाह में रहकर किसी दूसरे मर्द के बारे में तसव्वुर करना मेरे लिए गुनाह है। प्लीज़ बहराम, मैं आपकी आँखों में अपने और आपके रिश्ते के लिए बेएतबारी नहीं दे सकती। मुझ पर अपना एतबार कायम रखें। हरम बोलती हुई अपना वह सर बहराम के घुटनों पर रखकर रो दी। हरम के रोने पे से बाजू से थामकर सीधा से सोफे से उठा और हरम आंखों में आंसू भरे बहराम का चेहरा देखने लगी, जो इस वक्त भी बेतासुर था। रात काफ़ी हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। हरम की सारी बातें सुनने के बाद बहराम ने वही एक जुमला बोला जो उसको कमरे में आता देखकर बोला था, खुद कमरे से निकल गया। वो सुबह सवेरे यूनिफॉर्म में तैयार नाश्ते के लिए टेबल पर आया तो उसे किचन से बर्तनों की पटकने की आवाज़ें सुनाई थी। लाजमी हरम किचन में मौजूद सुबह का नाश्ता बना रही थी। फिर हम खामोशी से कुर्सी खिसका पर बैठता हुआ नाश्ते का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में हरम ट्रॉली में सारा सामान लेकर डाइनिंग हॉल में आई और बारी बारी ट्रॉली में मौजूद नाश्ते की बर्तन टेबल पर पटकने के अंदाज में रखने लगी, जिस पर बहराम ने बाकायदा सर उठाकर इसे देखा, मगर वो बहराम को देखने की बजाय केटल से चाय निकाल रही थी। बहराम ने चाय का मग थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो फिजा में ही रह गया। हरम चाय का कप लेकर टेबल पर रखते हुए अपने लिए कुर्सी खिसका कर बैठ चुकी थी। बहराम संजीदा निगाह इस पर डालकर अपने लिए केटल से खुद ही चाय निकालने लगा। तब उसे अपनी प्लेट के नीचे एक पर्चा नजर आया। ये क्या है? बहराम हरम को देखता हुआ पूछने लगा। जीप लड़कियों की तरह काट देना, ये ले यार, लेटर लिखने की आदत नहीं मुझे, पढ़ ले, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा है। वो बोलती हुई इस पर किया तंज कर गई थी। बहराम एक पल के लिए चौंका। लेटर लिखने का और कार्ड देने वाली एंजल की बात उसने जिया को बहुत पहले बताई थी। भला क्या ज़रूरत जिया को ये बात उसकी दूसरी बीवी को बताने की? बहराम उसके तंज को पीता हुआ पर्चा पढ़ने पढ़ने लगा, जो कि घर के सौदा सर से मुतालिक तैयार करदा लिस्ट थी। दाल, माश, मलका मसूर, दाल, चना, ये इतनी दालें कौन खाएगा? बहराम लिस्ट पढ़ने के साथ ही बोला, मैं खाऊंगी, उन फजूल लड़कियों जैसी मेरी आदत हर किसी जिनको हर वक्त बाहर का खाना मुँह को लगा हो। चुपते हुए लहजे में दूसरे तंज पर बहराम ने एक बार फिर हरम की तरफ देखा। कल वो किस तरह रोती हुई उसे असद और अपनी मंगनी की वजाहतें दे रही थी, और सुबह होते हुए उसकी पहली बीवी को लेकर उस पर तंज शुरू कर चुकी थी। बहराम दूसरा तंज भी नज़रअंदाज करता हुआ टेबल पर्चा वापस रखता हुआ बोला, दोपहर में जमाल को भेज दूंगा, ये लिस्ट उसी को दे देना, जमाल तुम्हें ये सारा सामान ला कर दे देगा। बहराम हरम से बोलता हुआ नाश्ता करने लगा। पराठा उसने काफ़ी ज़्यादा ऑयली बनाया था, मगर हरम के रवैये पर वो उसे इसके टोकने की बजाय खामोशी से खाने लगा। इस लिस्ट में कुछ मेरा भी सामान है जो जमाल लाता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। हरम की बात पर नाश्ता करता हुआ बहराम उसे देखने लगा, जो उसको देखने के बजाय बिस्किट चाय में डुबो कर खा रही थी। तो अपना सामान लिस्ट से काट दो, वो मैं ले आऊँगा, बाकी की लिस्ट से माल को दे देना। बहराम बात ख़त्म करता हुआ नाश्ता करने लगा। आपको क्या मालूम क्या सामान है? मेरे पढ़ने की ज़हमत थोड़ी की है आपने। हरम नराटेपन से बोली, पहली शादी नहीं है तुमसे, मेरी तजुर्बा है मुझे। बहराम उसे देखकर वाज़ेह अंदाज में जताता हुआ बोला, तो हरम खामोशी से चाय पीने लगी। बहराम को शादी का पहला दिन याद आया, कैसे डर रही थी वो इससे। ये वाज़ेह तब्दीली लाज़मी उसके एतराफ़ का नतीजा थी। तो उसने इसी के चचा के घर कल रात किया था। जब आप मेरा सामान ला सकते हैं तो बाकी का सामान जमाल क्यों लाए? हरम चाय पीती हुई पूछने लगी, तुम्हें सामान से मतलब होना चाहिए, इस बात से नहीं कि सामान कौन लेकर आ रहा है। मुझे आदत नहीं है शुरू से इन सब कामों की, और कल से पराठा इतना ऑयली बनाने की ज़रूरत नहीं। बहराम संजीदगी से इसको देखता हुआ बोला, हर इंसान को अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, मैं आपकी पहली बीवी की तरह नहीं जो आपकी हर बात पर कंप्रोमाइज़ करूँगी। अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। हरम की बात और अब की बात फिर बहराम काफ़ी देर तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ चाय पीने लगा। हरम ने भी सोच लिया था अगर वो ऐसा तो अब वो भी अपने रवैये में लचकने लगेगी, मगर बहराम को मुस्कुराता हुआ देखा तब गई। बहुत खुशी हो रही है बार बार अपनी पहली बीवी का जिक्र सुनकर। हरम के बोलने का अंदाज ऐसा था कि बहराम उसकी बात पे बेसाख्ता हंस दिया। मैंने रिवायती शौहरों वाला सलूक नहीं किया तुम्हारे साथ कि तुम्हारी मंगनी का मालूम होने के बाद तुम्हें तुम्हारे मंगते के ताने दूं, लेकिन तुम तो मुझे ढंग से नाश्ता भी नहीं करने दे रही हो। रिवायती बीवियों की तरह बात बात पर मुझे मेरी पहली बीवी के ताने दे रही हो। यकीन जानो ऐसा करती हुई तुम इस वक्त बिल्कुल अपनी नुसरत चच्ची के जैसी लग रही हो। बहराम हंसता हुआ इसे बोला, तो हरम अपने ओवर रिएक्ट पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। इतने में दरवाजे की डोर बजी। इससे पहले कि वो कुर्सी से उठकर दरवाज़ा खोलता, हरम खुद उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। बहराम खुद भी कुर्सी से सोचते हुए उठा, इतनी सुबह भला कौन आ सकता था? जी कौन है आप? किससे मिलना है? हरम अपने बालों की लटकान के पीछे करती हुई आने वाले से पूछने लगी, जो स्टैचू बना हुआ इसे हैरत से घूरे जा रहा था। अफान, तुम यहाँ इतनी सुबह? खैरियत तो है? अपनी पुष्ट से हरम को बहराम की आवाज़ सुनाई दी, मगर अफान ने सिर्फ एक नज़र बहराम पर डाली।
गई। वो अभी भी हैरत ज़दा होकर हरम को देख रहा था, जिस पर हरम को सामने खड़े लड़के पे हैरत होने लगी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से अंदर चली गई। अफान अभी भी हरम की पुश्त को घूर रहा था, तब बहराम ने उसको टोका, मेरी बीवी को घूरना बंद करो। बहराम अब की बार अफान को जताता हुआ बोला। बहराम समझ चुका था अफान की हैरत की वजह क्या थी। वो हरम को एंजल समझ रहा था। सॉरी, आई एम सॉरी सर, दरअसल मैं इतना ज़्यादा हैरान हूँ कि आपको आपकी मिसेज के साथ देखकर। अफान ने होश में आकर माजरत करते हुए बहराम को वजाहत देना चाहिए। अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। बहराम अफान की बात पर बोला, उसको अंदर आने की दावत देकर ड्राइंग रूम में चला आया। दरअसल मैं आपको यही शॉकिंग न्यूज़ बनाने के लिए आया था कि आपकी वाइफ जिंदा है, मगर यहाँ आकर इनको आपके साथ देखकर खुद शॉक्ड हो गया। अफान बहराम को अपने आने की वजह बताने लगा, मगर बहराम अफान की बात सुनकर सच में बुरी तरह चौंका। कब और कहाँ देखा तुमने एंजल को? बहराम का लहजा धीमा था, मगर तजस्सुस लिए हुआ था। बहराम के सवाल पे अफान बहराम के तासुरात देखने लगा। उसकी बीवी उसके पास ही तो थी, फिर भला बहराम को न तजस्सुस? कल मरीना क्लब में एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था, वहीं आपके मिसेज भी वहाँ मौजूद थी। टाइम कुछ रात के 12 साढ़े बजे के दरमियान था। अफान बहराम को बताने लगा। इसे बहराम पे हैरत हुई। इसने खुद बहराम को सारे सबूत दिए एंजल के खिलाफ, जिसे देखने के बावजूद वो याकूब नियाज़ी की केप से अब तक ताल्लुक़ रखा हुआ था। शायद सच्चा आशिक इसी को कहते हैं। अफान ने दिल में सोचा, मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। यानी मेरा शक सही निकला, हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो जाना मतलब वो जिंदा है? बहराम सोचता हुआ आहिस्ता आवाज़ में बोला। कल रात वो हरम को उसकी चचा के घर से अपने साथ ले आया था और 12 बजे से हरम उसके साथ इसी फ्लैट में मौजूद थी। बहराम की बात पर अफान कंफ्यूज होकर बहराम को देखने लगा। तब बहराम ने अफान की गलतफहमी को दूर करना ज़रूर समझा। ये एंजल नहीं है जिसे तुमने अभी देखा। एंजल की हम शक्ल है, मगर मेरी दूसरी बीवी हरम है। एंजिल वो थी जिसे कल रात तुमने देखा था। बहराम की बात सुनकर अफवाह खौफ बना बहराम को देखने लगा। ओ मेरे खुदा, ये तुम हो? एंजिल जख्मी हालत में जब इसे स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, तब डॉक्टर शाज़मीन इसे देखकर हैरत ज़दा होकर बोली। एंजिल ने दूर दर्द से कराते हुए अपनी आंखें खोली तो शहनाज़ चेहरा अपने सामने पाया। एंजिल, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, शाज़मीन इसे तसल्ली देती हुए बोली। वैसे भी इसे एक ही गोली लगी थी बाजू पे, जो कि खतरे का बायस हरगिज़ नहीं थी। वो मुझे दोबारा मार डालेगा शाज़मीन, अगर इसे मालूम हो गया कि मैं बच गई हूँ। एंजल खौफ के मारे गहरे सांस लेती हुई बोली। कौन कौन मार डालेगा तुम्हें? किसने चलाई तुम पर ये गोली? शाज़मीन नर्स की दी हुई कॉटन से उसके बाजू पे लगा हुआ खून साफ करती हुई एंजल से पूछने लगी। मेरा शौहर ASP मेहराम अब्बासी, उसी ने मुझ पर गोलियां चलाई है। मेरे सीने में भी उस बेरहम ने गोली उतारी है। एंजल को उस वक्त को याद करती हुई खौफ से शाज़मीन को बताने लगी। तुम्हें सिर्फ एक बुलेट लगी है एंजिल, वो भी बाजू पे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। सीने पे गोली खाने वाला इस तरह बात नहीं करता। शादनी नर्स से औजार मांगती मुस्कुराकर एंजिल से बोली। तभी एंजिल को याद आया, पहली गोली बहराम ने उसके बाजू पे चलाई थी। अपनी गोली लगने पर वो कितनी ज़्यादा खौफज़दा हुई थी जब दूसरी गोली बहराम ने उसके सीने पर चलाई और वो दर्द से कराती हुई नीचे गिरी। बकौल शादनी के अगर उसे सिर्फ एक गोली बाजू पे लगी तो दूसरी गोली फिर कहाँ गई? एंजिल ने कांपते हुए हाथ से अपने गले में पड़ा हुआ स्टील का पेंडेंट पकड़ा, जो इसे अपने सीने पर लगने वाली गोली से बचाया गया था। लाजमी वो गोली इसके पेंडेंट पर लगी थी, जिसकी वजह से वो बच गई थी। एंजिल, अब मैं तुम्हारे बाजू से बुलेट निकालने वाली हूँ, ओके? शाज़मीन ने उसे ज़हनी तौर पे तैयार किया तो एंजिल ने शाज़मीन का हाथ ज़ोर से पकड़ा। क्या तुम मेरा काम कर सकती हो? वो काम ज़रा रिस्की है, मगर उसके बारे में ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगी। एंजिल अपने बाजू में उठती हुई तकलीफ भरा घबराकर शाज़मीन से बोली। एंजिल को अपना किया हुआ एहसान भी याद आया, एक बार इसने अच्छी सी अमाउंट की सूरत में शाज़मीन को देकर इसके छोटे भाई की जान बचाकर उस पे किया था। तुम बोलो क्या करना है? इस वक्त मेरे इतने लिंक्स और कॉन्टैक्ट हैं, तुम्हारे हस्बैंड को उम्र भर के लिए जेल करवा सकती हूँ। उसने शाज़मीन को खुद से कहते हुए सुना। फिर एंजिल उसके नर्स को देखने लगी, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। इन दोनों की बातें सुन रही थी। तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो, ये किसी से कुछ नहीं बोलेगी। शाज़मीन की बात पे एंजिल को इस वक्त हारस में तो एंजिल ने सुकून का सांस लिया। इसके लिए आसान बिल्कुल नहीं था नज़र बचाकर अस्पताल से फ़रार होना। इस वक्त अगर शाज़मीन रिपोर्ट में इसकी डेड डिक्लेयर करके इसे अस्पताल के मुर्दा खाने तक नहीं पहुँचाती, तो आज वो इतने आराम से इस शहर से दूर एक कॉटेज में मज़े से ना बैठी होती। सिर्फ उसने शाज़मीन के सामने खुद को बेकसूर साबित किया था और बहराम को शकीन मिजाज शौहर, जिसने उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर गोली चलाई थी, वो बहराम को सज़ा दिलाने का इरादा नहीं रखती थी। बेशक शाज़मीन के मुताबिक उसका शौहर सज़ा का मुस्तहिक था, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो उल्टा उसको लेने के देने पड़ जाते। बहराम को सज़ा करवाने के चक्कर में उल्टा उसी पे केस खुल जाता। यूनिवर्सिटी में ड्रग्स सप्लाई करने का, फिर उसका बचना नामुमकिन था।
उसका मकसद बहराम को जेल करवाना नहीं बल्कि अपने आप को मुर्दा ज़ाहिर करके अस्पताल से निकल जाना था, जिसमें शाज़मीन और अस्पताल के अमले के चंद लोगों ने उसका साथ दिया। फायर अलार्म बजाकर सारा मैस क्रिएट करना सिर्फ अकेली शाज़मीन के बस की बात नहीं थी। इस काम में अस्पताल के 3 और लोग भी शामिल थे, जिनकी मदद से वो अस्पताल से बाहर निकली। माई डियर हस्बैंड अपनी वाइफ को मरा हुआ तस्वुर करके सिर्फ एक माह बाद ही तुमने दूसरी शादी कर ली। सो सैड बेबी, मगर मानना पड़ेगा बहराम अब्बासी तुम्हारी मोहब्बत को पहली बीवी से इतना इश्क कि दूसरी बीवी इसकी हमशक्ल ढूंढी। मुतासिर किया मुझे तुम्हारी इस बात ने, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह लो, मेरी जगह सिर्फ मेरी है, वो तुम्हारी दूसरी बीवी हर किस नहीं ले सकती। मैं ऐसा हर किस नहीं होने दूंगी डार्लिंग, तुम सिर्फ एंजल के हो। मैंने तुमसे विवाह की जिसकी साथ तुमसे पाली, बस अब कुछ और दिन और इसके बाद मैं तुम दोबारा एक हो जाएंगे। एंजल अपने मोबाइल पर बहराम की तस्वीर देखकर बोली, जिसमें उसकी दूसरी बीवी साथ ही मौजूद थी। ये तस्वीर बहराम के वलीमे की थी, जो उसके कहने पे वहाँ मौजूद वेटर ने नहायत खुफिया तरीके से ली थी। अपनी हमशक्ल को बहराम के साथ देखकर एंजल को बेहद जलन महसूस हुई। अपने चेहरे पर बहराम के दिए जाने वाले जख्मों ने इसे अभी तक बहराम की ज़िंदगी में शामिल होने से रोक के रखा था, वरना वो पहली रात ही बहराम के पास हरम की जगह मौजूद होती। बहराम के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करके वो फैसला कर चुकी थी, इसे अपनी बाकी की ज़िंदगी भी बहराम के साथ गुजारनी चाहिए, जिसके लिए इसे अपनी शनाख्त मिलकर हरम ही बनकर क्यों ना जीना पड़े। याकूब नियाज़ी जैसे जलील डरपोक इंसान जो कि इसको गोली लगता देखा फ़ौरन वहाँ से दम दबाकर अपने गार्ड्स के साथ फरार हो चुका था। उसमें एंजल को न पहले दिलचस्पी थी न अब, वैसे भी वो पक्की उम्र का मर्द बहराम अब्बासी जैसे शानदार मर्द का किसी चीज़ में मुकाबला नहीं कर सकता था। इसे किसी भी तरह बहराम के पास जाने के लिए पहले हरम को बहराम के फ्लैट से बाहर निकालना था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी बहराम के फ्लैट में मौजूद हिडन कैमरे के अलावा ऐसे सिक्योरिटी अलार्म भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई भी कार्रवाई करना उसके लिए बासे खतरा हो सकता है। वो सिर्फ उसके वक्त के इंतजार में थी जब हरम बहराम के बगैर उसके फ्लैट से बाहर निकले। सीने पे गोली मारने के बावजूद न जाने कि उसे शुरू से ही एंजल की मौत का यकीन नहीं था। हॉस्पिटल से डेड बॉडी का गायब हो जाना, उसके पीछे छुपी कहानी कोशिश करने के बावजूद वो नहीं जान पाया था, मगर वो इतना जान गया था कि ये काम याकूब नियाज़ी का हरगिज़ नहीं था। याकूब नियाज़ी के लिए एंजल वक्ती दिल बहलाने वाला खिलौना साबित हुई थी। इसका अंदाज इसे इसी वक्त हो गया था जब वो एंजल को ज़ख्मी हालत में छोड़कर इसके फ्लैट से फरार हो गया था। एंजल का ज़िंदा होना बहराम के लिए मायने नहीं रखता था। जिस दिन इसका एंजल से सामना हुआ, इससे अपना रिश्ता भी ख़त्म कर लेगा, ऐसा बहराम ने सोच लिया था। क्या उसे खुद से एंजल को ढूँढना चाहिए था या फिर उसकी आमद का इंतज़ार करना चाहिए था? न जाने क्यों बहराम की छठी हिस्स बार-बार इसे इशारा दे रही थी अ, एंजल से मिलने या फिर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत पे कोशिश करेगी। पुलिस स्टेशन से आज जल्दी घर आ गया था। कल की तरह इस वक्त वो अपने बेडरूम के बजाय दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। कल जब इस पे इंकशाफ हुआ कि एंजल ज़िंदा है, तब से वो इसको सोचे जा रहा था। धीरे से इसकी सोचों का रुख एंजल से हरम की तरफ चला गया। परसों जब उसके चचा के घर उस पर ये इंकशाफ हुआ था कि हरम पहले अपने खालाजाद से मंसूब रह चुकी है, रिवायती मर्दों की सोच की तरह, ये बात उसको ज़रा पसंद नहीं आई थी, जिसका इज़हार वो अपने रवैये से हरम और उसके घर वालों के सामने कर चुका था। जिसके बाद दूसरे दिन सुबह पुलिस स्टेशन जाते वक्त उसके पास हरम के चचा और असद की कॉल भी आई थी। वो दोनों ही इसके और हरम के रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद थे। असद ने इससे निकी की बातों को लेकर माजरत भी की थी और उसे यकीन भी दिलाया था कि वो सिर्फ और सिर्फ निकी की गलतफहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरम ने खुद भी घर आकर इसे हर बात की वजाहत दी थी, जिस पर फ़ौरन वो हरम से कुछ कह भी नहीं पाया, क्योंकि इस मौजू के अलावा भी इसके दिमाग में दूसरी सोचें चल रही थी, जिसे 3 दिन बाद बॉबी को फांसी की सज़ा हो जाती। याकूब नियाज़ी का इन दिनों इतना खामोश होकर बैठना भी आम बात नहीं थी। वो इतनी आसानी से अपने भाई को मरने नहीं देगा। बहराम को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था। जब वह अस्पताल में ज़ख्मी हालत में था, तब भी याकूब नियाज़ी ने जान तोड़ कर कोशिश की थी कि वो किसी तरह पता लगा ले कि बहराम ने इसके भाई को कहाँ छुपाया हुआ था। इस वक्त याकूब नियाज़ी क्या सोच बैठा था, इसे खबर नहीं थी। इन दिनों से अपनी जान से ज़्यादा उससे उस रिश्ते की परवाह थी जो रिश्ता उसकी बहन ने उससे जोड़ कर गई थी। लेकिन हरम उसके पास फ्लैट में महफूज थी। यही सारी बातें वो सोच रहा था। तब हरम तीसरी मर्तबा कमरे में आई। आपको खाना खाना है या यूं ही पहली बीवी की यादों में खोए रहना है? बहराम हरम की बात पर चौंका, फिर उसके जुमले पर गौर करता उसे घूरने लगा, मगर हरम उसके घूरने की परवाह किए बगैर कमरे से चली गई। मरने वाली तो खुद कब्र में चली गई और ये मौसी उसकी यादों का शोक मना रहे हैं। मैं तो बीच में मुफ्त में फंस गई। जब से आए इसकी यादों में घूमे, मैं तो बस इस घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ जैसे। हरम अपना दिल जलाकर बड़बड़ाती हुई बोली जा रही थी। ये जाने बगैर उसके पीछे आता बहराम उसकी सारी गुफ्तगू सुन चुका था। वो लाउंज में आकर जैसे ही पलटी, सामने बहराम को देखा इसकी ज़बान को ब्रेक लगा। ज़बान काफ़ी चल रही है तुम्हारी, कल से काबू में रखो इसे, वरना मसला करेगी तुम्हारे लिए। बहराम हरम को देखकर सीरियस होकर इसे वार्न करने लगा, क्योंकि वो कल सुबह से अब तक उसे कितनी मरतबा पहली बीवी के ताने दे चुकी थी, कितनी सारी मरतबा आपको खाने के लिए बोल कर आ चुकी है, मगर आपने तो मेरे कमरे में आने का कोई नोटिस ही नहीं लिया। मालूम नहीं किस गहरी सोच में आप डूबे हुए हैं।
हरम उससे शिकवा करते हुए खुद कुर्सी पे बैठ गई क्योंकि खाना वो पहले ही टेबल पर रख चुकी थी। कितनी सारी मर्तबा तुम मेरे पास कमरे में सिर्फ 3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी हो। पहली बार तुमने सिर्फ इतना बोला खाना तैयार है और मुँह बनाती हुई कमरे से चली गई। दूसरी मर्तबा तुम 10 मिनट के वक़्फ़े के बाद कमरे में दोबारा आए और तंज़ करती हुई बोली आपको खाना खाना है या बर्तन उठा लूँ? फिर तुम गुस्से में दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती हुई दोबारा कमरे में चली गई। अभी तुम तीसरी बार पूरे 5 मिनट 2 सेकंड गुज़रने के बाद आई हो। इसके बाद मुझे मेरी पहली बीवी की यादों का ताना देकर मुँह बनाती हुई वापस चली गई। इतना बेखबर हरगिज़ नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। बहरहाल एक-एक बात को इसको जताता हुआ खुद भी हरम के सामने कुर्सी पे बैठा। चावल निकालो आपके लिए या फिर रोटी खाएँगे? वो बहराम की कुर्सी पे बैठा हुआ देखकर उससे पूछने लगी, जैसे कल सुबह से पटक-पटक कर नाश्ता और दूसरी चीज़ें दे रही हूँ। इससे बेहतर ये कि जो मुझे खाना है वो मैं अपनी प्लेट में खुद निकाल लेता हूँ। बहराम ने सालन का बाउल उठाते हुए उसे शर्मिंदा करना चाहा और बहराम की बात सुनकर वो दिल से शर्मिंदा भी हो गई थी। इसे अफ़सोस हुआ कि वो क्यों हूँ नुज़रत चची बनती जा रही है। इसके चचा तो सीधे-साधे इंसान थे, तभी नुज़रत चची का उनके साथ निभाव हो गया था। मगर सामने बैठा हुआ ये शख़्स इसका शौहर इसके चचा की तरह ज़रा-सा भी सीधा नहीं, काफ़ी टेढ़ा बंदा था। इसे सँभल कर रहना चाहिए था। आज दोपहर में सबिया ख़ाला की कॉल आई थी और हम दोनों को कल रात डिनर पर अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करना चाह रही थी। हरम ने चावलों से भरी ट्रे उठाकर धीमे लहजे में बहराम को मतलब की बात बताई। मना कर दो अपनी ख़ाला को, हम नहीं आ रहे। बहराम मुँह में निवाला डालता हुआ आम से लहजे में बोला। हरम से चावल में जलता चम्मच रोककर बहराम को देखने लगी जो पुरसुकून अंदाज से बैठा हुआ खाना खा रहा था। निक्की की भी कॉल आई थी मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। वो बोल रही थी बहराम आपी भाई से अपने गलत रवैये की खुद माफ़ी माँगूँगी। बस इस वक़्त वो मज़ीद कुछ कहती बहराम ने संजीदा निगाह से मिलाते हुए चुप हो गई। खामोशी से खाना खा लो। वो हरम को देखता हुआ बोला फिर खाना खाने लगा। ठीक है आप मत जाइएगा, मैं कल शाम में खुद चली जाऊँगी सबिया ख़ाला के घर। आप बस ड्राइवर को भेज दीजिएगा। हरम उसको मशवरा देती हुई चावलों का चमचा मुँह में डालने लगी। हम का मतलब सिर्फ़ मैं नहीं, हम दोनों ही होते हैं। ना कल तुम कहीं जा रही हो, ना ही मैं। अब इस मौज़ पे कोई दूसरी बात नहीं होगी हमारे बीच। बहरहाल अब की बार तंबी करता हुआ बोला, वो नहीं चाहता। 3 से 4 दिन तक हरम फ्लैट से बाहर निकले। हरम को समझाता हुआ दोबारा खाना खाने लगा। ठीक है, मेरे रिश्तेदार तो इस काबिल भी नहीं कि आप इनसे मिला ऐसा करें आप मुझे कल एक्सपो ले जाइएगा, वहाँ सेल लगी हुई है। मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, पैसे हैं मेरे पास। सर हरम की अगली बात पर बहराम के मुँह में जाता हुआ निवाला वहीं रुका और खामोशी से हरम की शक्ल देखने के बाद बोला, क्या चाह रही हो तुम? इस वक़्त मैं आराम से खाना खाऊँ या फिर उठकर यहाँ से चला जाऊँ? अब की बार बहराम बेहद संजीदगी से हरम से पूछने लगा तो वो खुद को कुर्सी से उठ गई। अब सुकून से खाना खाए, मैं ही चली जाती हूँ। हरम ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि अपनी बात पे अमल करती हुई वहाँ से चली गई। बहराम उसकी पुश्त को घूरता रह गया। फिर इसने सुकून से खाना खाया। नहीं सुनेंगे वो आपकी कोई भी बात। बस 2 दिन से दूसरे कमरे में मुँह फुलाकर और डेरा जमाकर बैठे हैं। मैंने बताया भी था कि वो मंगनी मेरे पेरेंट्स ने तय की थी, जिसकी मुद्दत बेशक 4 साल का अरसा रही, मगर उस मंगनी की हैसियत मेरी नज़र में हमारे रिश्ते के आगे 0% भी नहीं है। लेकिन उन्होंने तो अचानक एक शक्की मिज़ाज शौहर का रूप धार लिया। खाला के घर दावत पे जाने से भी मना कर दिया। मुझे बाहर भी नहीं लेके जा रहे। कसम से आप, ये आपने कहा था कि मुझे बहराम की नहीं अपनी बड़ी बहन समझना। जब भी मैं आपके सामने आपके पूछने पे अपने दिल का हाल आपको बता रही हूँ, मुझे तो ये भी लगता है वो अपनी पहली बीवी को भी नहीं भूले। दुनिया से जाने के बाद भी वो हम दोनों के बीच हमेशा ज़िंदा रहेगी। वो सोफ़े पे दोनों पाँव ऊँचे करके बैठी हुई, एक हाथ पकड़े कुछ टिश्यू से बार-बार आँसू साफ़ करती, दूसरे हाथ ने पकड़ा मोबाइल कान से लगाया। यकीनन उसकी बहन से उसकी बुराइयों में मसरूफ़ थी। ये मंज़र देखकर बहराम का खून खौल उठा। वो जो अरहम को खाना खाने के का बोलने बेडरूम में आया था, कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ इससे हरम से मोबाइल लेकर अपने कान में लगाया। आखिरकार मिल ही गई तुम्हें अपनी ही जैसी, बस यही तो एक काम है तुम औरतों का। रोज़-रोज़ मोबाइल पर 2-4 दुखड़े इसके सुन लिया करो, 2-4 बुराइयाँ मुबश्शिर भाई की इससे कर डाला करो, मगर अक्ल की बात इसको कभी भी नहीं समझाना। यूँ अचानक मोबाइल उसके हाथ से लेने पर हरम बहराम को देखने लगी। यकीनन वो चुप-चुप कर इसकी अपनी बहन से बातें सुन रहा था। जी हाँ, मर्द के दिमाग में 10 तरह की सोचें चल रही होती हैं कि तुम्हारे और इसकी जैसी कम-अकल औरतों की कम-अकली का नतीजा है, जो खुद से हर बात का तसव्वुर कर बैठती हैं। हमारा शौहर किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा होगा। वो मोबाइल पे अपनी बहन को सुना रहा था। हरम सर झुकाए वहीं खड़ी थी। इसे इस वक़्त जिया को फ़ोन करना ही नहीं चाहिए था, बल्कि वही अच्छा वक़्त था कि जब वो बहराम के पुलिस स्टेशन जाने पर कल दोपहर में जिया से बात करती। अभी फ़ौरी तौर पर जाने से मना किया तो कुछ दिमाग में चल रहा होगा। मेरे ताल्लुक तो नहीं ख़त्म करवा रहा मैं इसके हसीन व जमील रिश्तेदारों से। इसका यार अच्छा ख़ासा मैं अकेला रहता था, बिला वजह मेरी शादी करवा के तुमने मुझे भिजवा दिया। बहराम जिया को मज़ीद झाड़ता हुआ बोला और लाइन काट कर मोबाइल उसके ने टेबल पर रख दिया। हरम एक नज़र बहराम के चेहरे पर नज़र डाल के कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर इससे पहले ही बहराम ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या फ़िज़ूल की बातें कर रही थी तुम जिया से कि मैं अपनी पहली बीवी को नहीं बुलाऊँ? तुमसे शेयर नहीं किया था मैंने
कि वो किस तरह की लड़की थी। मेरा मियाँ इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं ऐसी लड़की को अपनी यादों में ज़िंदा रख सकूँ, जिसने मुझसे वफ़ादारी नहीं निभाई। कोई भी मर्द खुद चाहे जैसा भी हो, मगर वो अपने लिए अपनी बीवी से वफ़ादारी की उम्मीद रखता है। मगर तुम ये बातें नहीं समझोगे, क्योंकि तुम एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की हो। अब इस वक़्त कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम पर ये बात अभी और इसी वक़्त वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो हम दोनों के बीच अब कहीं भी नहीं है, और दूसरा ये कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। बहराम ने हरम से बोलते उसके गले से दुपट्टा खींचकर सोफे में फेंका और हरम को बेड की तरफ धकेला। हरम एकदम बहराम के अमल पर भौंकला गई। बहराम उसके करीब आकर बहरम पर झुका। कहा, क्या हो गया, आप आपको पीछे हटे प्लीज़। हरम एकदम घबराती हुई बोली, मगर बहराम उसकी बात अनसुनी करता हुआ हरम की गर्दन पर झुका। बहराम के होठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस कर हरम शर्मिंदा हो गई। बहराम, मेरी इन बातों का वो मतलब नहीं था। आप बिल्कुल गलत मानों में ले रहे मेरी बात को। हरम बोलती हुई शर्म से पानी पानी हो गई। वो शायद इस वक्त इसके लिए उसके करीब आया ताकि वो दोबारा वो उसके मुँह से पहली बीवी का ताना न सुन सके। बातों का जो भी मतलब हो, इसे अब सोचना क्या? तुम चाहती हो कि हम दोनों के बीच वो कभी ना आए, तो मैं भी यही चाहता हूँ। जो मैं करने वाला हूँ, इसके लिए वो करना ज़रूरी है। वो बोलता हुआ हरम की कमीज़ कंधों से नीचे कर चुका था। हट जाइए बहराम, प्लीज़ हट जाइए, पीछे हट जाइए। हरम ने बोलते हुए उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर बहराम को पीछे करना चाहा। न जाने वो उसको कैसी लड़की समझ रहा था जो उसकी गुर्बत के लिए मरी जा रही थी, जब भी उसकी बहन उसकी शिकायतें लगा रही थी। हरम सोचते हुए शर्मिंदे से हो जा रही थी। बहराम ने उसके दोनों हाथ उसकी पुष्ट पे ले जाकर अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़े। ज़रा सा उठता हुआ वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगा, जिसे देखकर हरम की आंखें फैल गई। ये क्या है? ये क्या करने वाले बहराम? आप मेरे साथ प्लीज़ छोड़े मुझे। बहराम की बात में निडल की तरह कोई अंदर नोकदार लंबी सी चीज़ों को अपनी पॉकेट से निकालने के बाद उसने हरम के दिल के पास रखी, तो हरम की आंखें खौफ से फैल गई और सांस रुकने लगी। कभी कभी अपनी कीमती चीज़ को अपने पास रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता जिसके लिए तुम्हें तकलीफ देना ज़रूरी है। बहराम ने बोलते हुए निडल इसके दिल के ऊपर रखकर अंदर की तरफ दबाई, तो तकलीफ के मारे हरम के मुँह से चीख निकली। नहीं बहराम, प्लीज़ नहीं। हरम रोती हुई बोली। इसने अपने दोनों हाथ हरम के मजबूत ग्रिप से छुड़ाने चाहे, मगर वो निडल ना जाने क्या कर रहा था, जिससे हरम को शदीद तकलीफ हो रही थी। जब बहराम उसके ऊपर से उठा, तो हरम में रोते हुए बेड पर लेटे लेटे अपना रुख मोड़ लिया। उसके जिस्म का हिस्सा सुन्न हो चुका था। दिल नहीं है आपके सीने में, बेरहम आप चले जाएँ मेरी नज़रों के सामने। हरम जानती थी बहराम वहीं मौजूद है। जब ये अपना रुख वैसे ही मोड़े तोड़ती हुई बोली, तो बहराम खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। रात वो रोते-रोते सो चुकी थी। इसे मालूम नहीं था कि रात में उसके सोने के बाद बहराम कब वापस बेडरूम में आया। उस वक़्त आहट से उसकी आँखों तो उसने बहराम को बेडरूम में रूम में मौजूद पाया। वो यूनिफ़ॉर्म में मलबूस कलबाई में रिस्ट वॉच पहन रहा था। हरम को जागता हुआ देखा वो बेड की तरफ बढ़ा, तो हरम ने फ़ौरन दूसरी तरफ करवट लेकर अपना रुख फेर लिया। वो बहराम पर ज़ाहिर करना चाहती थी कि कल रात वो उसकी दी हुई तकलीफ़ की वजह से उससे नाराज़ थी। वो बेड पर अपने नज़दीक बहराम का बैठना महसूस कर चुकी थी। अपने शाने पे बहराम के हाथ का लम्ब महसूस करे हरम ने आँखें बंद कर ली। उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी, ना ही उससे बात करना चाहती थी। सिर्फ़ 3 से 4 दिन सब्र कर लो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी तुम्हें सबिया खाला के घर ले जाऊँगा, और जहाँ से चाहो अपने लिए शॉपिंग भी कर लेना, वो भी मेरे पैसों से। अपने पैसे तुम अपने पास सँभाल के रखो। बहरहाल मुझसे नाराज़गी दूर करने की गर्ज से सलाजो अंदाज़ में बोला, ना ही मुझे अपनी खाला के घर जाना है, ना ही मुझे शॉपिंग करनी है। मैं आप सिर्फ़ अपने चचा के घर जाना चाहती हूँ, और उसके लिए ना ही आपको ड्राइवर भेजने की ज़रूरत है, ना ही मैं आपको खुद ज़हमत दूँगी। खुद चचा खुद आकर मुझे यहाँ से ले जाएँगे। वो बहराम की हरकत पर फ़िलहाल इससे नाराज़गी ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए रुख मोड़े बगैर उससे बोली, अगर तुम मुझसे ख़फ़ा होकर यहाँ से जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें हरगिज़ जाने की इजाज़त नहीं दूँगा, और अगर तुम्हें अपने चचा से मिलने का दिल चाह रहा है, तब भी तुम फ़ौरी तौर पर यहाँ से नहीं जा सकती। मतलब 3 से 4 दिन तक तुम इस पर चारदीवारी से बाहर नहीं निकलोगी। बहराम आस्ते आस्ते हरम को सीधा करता हुआ नरमी से उसे समझाने लगा, तो हरम गुस्से में उसे देखने लगी। कैद करना चाहते हैं आप मुझे यहाँ पर अपने पास? उसके गुस्से की भलाई हमें सी क्या थी। वो बेड पर सीधी लेटी बहराम को देखकर शिकवा करने लगी, जिद मत करो हरम, कोई वजह है जब ही ऐसा बोल रहा हूँ। बहराम ने उसे शिकवा करते देखा, तो एक बार फिर वो समझाया। वो बेड पर हरम के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। उसने अपना हाथ फैलाकर बेड पे इस तरह रख लिया कि हरम चाह कर भी दोबारा दूसरी जानिब करवट नहीं ले सकती थी। तो फिर आप चले जाएँ यहाँ से। हरम उसका चेहरा देखे बगैर सामने दीवार को देखती हुई बोली, इतना बुरा लग रहा हूँ तुम्हें मैं? बहराम ज़रा-सा हरम की जानिब झुकता हुआ उसे गौर से देखकर पूछने लगा, अभी के लिए? हाँ। उसने अभी भी बहराम को नहीं देखा था, मगर अपनी जानिब बहराम के झुकाव से उसकी
اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی جو بے حد آہستگی سے اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ تو یہ بات میرا چہرہ دیکھ کر بھی بول دو، میں مان جاؤں گا۔ بہرام نے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ حرم کے گال پہ رکھا تو جیسے حرم کو کرنٹ چھو گیا۔ کیوں کیا تھا آپ نے میرے ساتھ کل رات اس طرح؟ اپنے اوپر جھکے بہرام کا چہرہ دیکھ کر حرم اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی پوچھنے لگی تو بہرام کی نظر اس کی گردن سے ہوتی نیچے گئی۔ بہت سی باتیں انسان فوری طور پہ سمجھ نہیں پاتا، یہ سمجھو جو کل رات ہوا وہ ضروری تھا، اس بات کو لے کر تمہیں مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرام کی بات پہ حرم کو غصہ دلا گیا، کیا وہ اس سے جارحانہ سلوک کی مستحق تھی؟ اوپر سے وہ شکوہ کرنے یا ناراض ہونے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ آپ کے بارے میں میری رائے بالکل درست ہے، آپ بہت بے رحم انسان ہیں۔ حرم اپنا غصہ چھپائے بغیر اس سے بولی، اور اس بے رحم انسان کو ناشتہ کروانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اسے حرم کی بات پہ کم سے کم شرمندہ ضرور ہونا چاہیے تھا، مگر حرم نے دیکھا بہرام چہرے پہ مسکراہٹ لیے اس سے ناشتے کا پوچھ رہا تھا۔ باہر جا کر کسی اچھے سے ہوٹل سے کر لیجیے گا، یہ وردی دے کر کوئی بھی پیسے نہیں لے گا آپ سے۔ بہرام کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جل کر بولی تو بہرام اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ اس اچانک عمل پر حرم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ بہرام اس کے گلابی ہونٹوں پر محبت بھری مہر لگا کر پیچھے ہوا تو شرم سے حرم کے گال سرخ ہو گئے۔ میں مفت کھانے کی بجائے حلال کھانا پسند کرتا ہوں، بہرام فرش سے انداز میں حرم کو جتاتا ہوا بولا۔ آپ لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جائیں پلیز۔ حرم پلکیں جھکا کر اسے دیکھے بغیر بولی۔ بہرام اس کی شرمانے کے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کافی دیر تک اسے نظر نہیں ملائے گی، اس لیے حرم کے شرمیلے روپ کو آنکھوں میں سماتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی تو حرم شاور لینے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے موبائل پہ 8 سے 10 پرائیویٹ نمبر سے کال آئی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ کال اسے بہرام کر رہا ہے، مگر اپنے نمبر سے نہیں، پولیس اسٹیشن سے۔ وہ اپنے موبائل سے بہرام کا نمبر ڈائل کرنے لگی، تبھی لینڈ لائن بجنے لگا۔ حرم موبائل بیڈ پہ رکھتی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی جہاں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو، وہیں پرائیویٹ نمبر شو ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر حرم فون کان پہ لگاتی ہوئی بولی، میں بہرام بات کر رہا ہوں۔ حرم میری بات غور سے سن لو، تم فوری طور پہ فلیٹ سے باہر نکلو، نیچے بلیک کلر کی مرسڈیز میں ڈرائیور کو تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے، جلدی سے جا کر اس گاڑی میں بیٹھو، وہ ڈرائیور تمہیں میرے پاس لے کر آ جائے گا۔ یہ بہرام اتنی جلدی میں تھا کہ حرم اس کی بات سن کر بھوکلا گئی، مگر آپ تو صبح ہی کہہ کے گئے تھے کہ 3 سے 4 دن تک فلیٹ سے باہر نہیں نکلنا، پھر اچانک کیا ہوا؟ حرم کنفیوز ہوتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ جو میں بول رہا ہوں تم وہی کرو۔ دیکھو حرم، اس وقت بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، کسی وجہ سے بول رہا ہوں میں۔ بہرام اب کی بار ڈانٹتا ہوا بولا، پھر وہ وجہ بتائیں، ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ حرم اس کے ڈانٹنے کی پرواہ کیے بغیر بولی، اس وقت فلیٹ میں تمہارے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہے، تمہاری جان خطرے میں ہے، تم فوراً گھر سے باہر نکلو۔ اب کی بار بہرام کی بات سن کر حرم کے ہوش اڑ گئے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی دوسرا فلیٹ میں موجود تھا، یہ سوچتے ہی خوف سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ لائن اب کٹ چکی تھی، وہ وہی کھڑی چاروں طرف کمروں میں نظریں دوڑانے لگی، خوف سے اس کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا۔ تبھی بیڈ روم میں اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ حرم وہی کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ موبائل لینے بیڈ روم میں جائے یا سامنے مین دروازے کا لاک کھول کر جلدی سے باہر نکل جائے۔ جو 8 سے 10 قدم کی دوری پر اچانک پردہ ہلا تو ڈر گئی۔ پردہ ہوا سے بھی ہل سکتا تھا کیونکہ لانچ کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، لیکن اگر اس پردے کے پیچھے کوئی موجود ہوا، اس سوچ سے ذہن میں آتے اس نے اپنا موبائل بجنے دیا اور تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ بہرام کی بات سن کر اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ لفٹ کھلنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، تبھی وہ کسی سے ٹکرائی۔ ارے میم، سنبھل کر چلیں، عفان نے سیڑھیوں سے اترتی لڑکی سے کہا، جلدی میں تھی، اس سے بری طرح ٹکرا گئی تھی، سوری۔ تو حرم بولتی ہوئی رکی نہیں بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ آپ ASP مہرام عباسی کی وائف ہیں؟ عفان اسے پہچان گیا تھا، تبھی جلدی سے بولا، مگر وہ پہلے والی تھی اور دوسری والی؟ عفان خود کنفیوز تھا۔ آپ بہرام سے ملنے آئے تھے نا گھر پر؟ بہرام کہاں ہے اس وقت، کیا آپ کو معلوم ہے؟ عفان کے بولنے پر حرم رکی، وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ عفان سے ہی بہرام کا پوچھنے لگی، ASP صاحب تو اس وقت تھانے میں ہوں گے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ یہ بہرام اس نے بہرام کو فلیٹ میں دیکھا تھا، عفان اس کو پہچان گیا تھا، جبھی وہ حرم سے پوچھنے لگا، فلیٹ کے اندر کوئی موجود ہے؟ بہرام نے فون پر کہا، نیچے کھڑی مرسڈیز میں بیٹھ کر میں ان کے پاس آ جاؤں؟ معلوم نہیں اسے یہ سب سامنے کھڑے لڑکے سے بولنا چاہیے تھا کہ نہیں، مگر وہ ڈری ہوئی تھی، اسے رونا بھی آ رہا تھا، شاید اسے جلدی نیچے جانا چاہیے تھا۔ بہرام کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا ہوگا، ASP صاحب نے آپ کو خود بولا تھا اب ان کے پاس آ جائیں۔ میرے خیال سے تو اگر آپ کے فلیٹ میں کوئی موجود ہوتا تو ASP صاحب خود آپ کے پاس پہنچتے یا کسی دوسرے کو بھیجتے۔ کیا آپ کو واقعی ASP صاحب نے اپنے پاس آنے کو کہا ہے؟ عفان کے سوال کرنے پہ حرم خود کنفیوز ہو گئے، فون پر وہ آواز بہرام کی تھی یا شاید نہیں، مجھے نہیں معلوم،
मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हरम बड़ी कंफ्यूज हो गई। इसे सामने खड़ा ये लड़का भी मशकूक लग रहा था। ये दूसरा फ्लोर था जहाँ वो दोनों इस वक्त खड़े थे। आप इस तरह परेशान मत हो, मैं अभी कॉल करके एएसपी साहब से कंफर्म कर लेता हूँ। सारी बात अभी क्लियर हो जाएगी। अफान ने बोलते अपना मोबाइल निकाला। वो बहराम को कॉल का मिला रहा था। अफान, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अफान को लगा बहराम इस वक्त मसरूफ था। इसकी कॉल काटने से पहले अफान बोल पड़ा, आपकी मिसेज बोल रही हैं आपके फ्लैट में कोई मौजूद है और आपने इन्हें अपने पास बुलाने के लिए कोई गाड़ी भेजी है। अफान की बात सुनकर बहराम ने कदम कमिश्नर साहब के कमरे में जाने से पहले रुक गए। वो बुरी तरह चौंका। अफान, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? अगर हरम इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है तो मेरी बात कराओ उससे। अब बहराम कमिश्नर के पास नहीं जा सकता था। मोबाइल कान से लगाए वो भागता हुआ बाहर अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। हेलो, तभी उसे घबराई हुई हरम की आवाज़ अपने मोबाइल पर सुनाई दी। मैंने तुमसे क्या बकवास की थी कि तुम फ्लैट की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलोगी? हरम, फौरन फ्लैट में पहुंचो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। बहराम आसपास की परवाह किए बगैर गुस्से में हरम पर चीखता चलाता हुआ बोला और गाड़ी में बैठा। उसे डर था आज नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए। बहराम, आप ही ने तो मुझे घर के नंबर पर फ़ोन करके बोला था। हरम को बहराम की आवाज़ सुनकर इत्मीनान हुआ। जब भी वो बहराम से बोलने लगी तभी सामने लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और दो आदमी हरम और अरफान की तरफ बढ़ने लगे। शिट, अब हरम, फौरन फ्लैट के अंदर जाकर दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करो, मोबाइल उफान को दो। बहराम एक बार फिर ज़ोर से बोला। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। चलिए मैडम, हमारे साथ आपको एएसपी साहब बुला रहे हैं। ये अजनबी आवाज़ बहराम अपने मोबाइल पर वाज़ेह सुन सकता था। इसे नहीं मालूम था कि मोबाइल इस वक्त अफान के पास था या हरम के पास। बहराम दोबारा तेज़ आवाज़ से बोला, अफान प्लीज़ हरम को इसके साथ कहीं मत जाने देना, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। बहराम ने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की थी। गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाता हुआ बोला, ये तुम दोनों किसके साथ कहीं नहीं जा रही हो? मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा ताल्लुक मीडिया से। तुम दोनों को एक्सपोज़ करने में मिनट भर नहीं लगाऊंगी, चलो जाओ यहाँ से। अफान ने अपना मोबाइल हाथ में पकड़े पॉकेट से अपना कार्ड निकाल कर उन दोनों को दिखाता हुआ बोला। हरम सूरत हाल पर परेशान होकर अफान के पीछे छुप गई। इन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और अफान पर फायर किया। हरम बहराम को अपने मोबाइल पर फायरिंग की आवाज़ और हरम की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बहराम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए चीख कर हरम का नाम पुकारा। मोबाइल पर राब्ता खुद ब खुद ख़त्म हो चुका था। बहराम ने गाड़ी को वही ब्रेक लगाया। पीछे गाड़ी को टक्कर लगने से कोई आदमी उस पे चीख रहा था, मगर बहराम का दिमाग एकदम चकरा सा गया था। वो आस-पास मौत से बेनियाज़ कुछ और सोच रहा था। फिर उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। अब की बार उसकी गाड़ी का रुख अपने अपार्टमेंट की तरफ नहीं बल्कि याकूब नियाज़ी की तरफ था। आ अफ़ान गोली लगने से जैसे ही नीचे गिरा, हरम खौफ के मारे ज़ोर से चीखी। अफ़ान के हाथ से मोबाइल भी नीचे गिर चुका था। चलो लड़की हमारे साथ। वो दोनों आदमी हरम को अपने साथ ले जाने लगे। शायद उसके लिए आज बहुत बुरा दिन था। वो सोचती हुई खौफज़दा सी अफ़ान के गिरे हुए बेहोश वजूद को देखने लगी। हर फ्लोर पर कैमरे लगे होने के बावजूद दोनों बेखौफी से हरम को अपने साथ ले जाने लगे। एएसपी साहब की भी हमारे कस्बे में प्लान कामयाब हुआ, उनमें से एक आदमी फ़ोन पर बोला और दूसरा आदमी उसके पीछे था जिसने हरम की कमर पर पिस्तौल की नाल रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर थी। ठीक है, उसकी बीवी को मेरे फार्म हाउस पे ले आओ। दूसरी तरफ से बोलकर कॉल रख दी गई। अफान गोली लग चुकी थी। बहराम उसके पास नहीं था। मालूम नहीं अब वो बहराम से दोबारा मिल सकती भी है या नहीं। एक लड़के को मारकर वो किसी को कहाँ ले जा रहे थे, इसके साथ आगे क्या होने वाला था, ये सारी बातें सोचते हरम गाड़ी में बैठी। गाड़ी स्टार्ट होकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। सारी उम्र वो ऐसी खबरें अखबार में पढ़ती आई थी या न्यूज़ चलने पर देखती आई थी कि दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसके 4 दिन बाद ज़्यादती करके उसकी लाश दरिया में बहा दी गई है या कचरे में फेंक दी गई है। क्या उसका भी इन लड़कियों की जैसी किस्मत थी? न जाने क्या-क्या सोचे उसके दिमाग में चलने लगी। बेहरम के हवासों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो खौफ और सदमे के ज़ेर असर बेहोश हो चुकी थी, जबकि गाड़ी शहर से दूर याकूब नियाज़ी के फार्म हाउस की तरफ रवाना थी। अरे आप ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हैं? याकूब नियाज़ी की बीवी जो अपनी बेटी के साथ घर के लॉन में बैठी हुई थी, बहराम को गार्ड से लड़ने के बाद अंदर आता देखकर बोली, अपने शौहर को बुलाओ अभी। और इसी वक्त बहराम का दिमाग इतना घुमा हुआ था, सामने लेटी दे खड़ी है वो भूल गया था। गुस्से से चीखता हुआ बोला, सर घर पर मौजूद नहीं है, वो सुबह के अपने फार्म हाउस में मौजूद है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? याकूब नियाज़ी की बीवी की बजाय वहाँ खड़ा मुलाजिम बहराम को यूनिफॉर्म में देखकर एहतरामन से सीधे मुँह बात करता हुआ बोला। गेट पर खड़ा गार्ड दूसरा मुलाजिम भी वही लॉन में आ गए। बहराम ने मुलाजिम की बात सुनकर गन होल्स्टर से रिवाल्वर निकाला और किसी की परवाह किए बगैर याकूब नियाज़ी की बेटी की कनपट्टी पे रख दी। अब मम्मी, वो 15 साल की लड़की डर कर बोली, जबकि याकूब नियाज़ी की बीवी खौफ से अपनी बेटी की बात बहराम को देखने लगी। अगर किसी ने भी कोई होशियारी दिखाई तो मैं बगैर सोचे समझे इस लड़की के दिमाग में गोली उतार दूंगा। बहराम ने सारे मुलाजिमों को देखकर इन्हें वार्न किया। फिर याकूब नियाज़ी को बीवी को देखता हुआ बोला, तुम्हारे शौहर के वफादार मुलाजिम मेरी बीवी को तुम्हारे शौहर के कहने पर उठाकर उसके फार्म हाउस पर ले
गए हैं, अपने शौहर को मेरा मैसेज दे देना, अगर उसने मेरी बीवी को अपने गंदे हाथों से भी छुआ तो मैं उसकी बेटी का वो हश्र करूँगा कि वो चीख कर अपने मरने की दुआ करेगा। अपने शौहर को फ़ोन करके बोलो वो मेरी बीवी को बाइज़्ज़त तरीके से मेरे घर छोड़ आए, नहीं तो तुम दोनों को तुम्हारी बेटी वापस घर में कभी नज़र नहीं आएगी। बहराम उसकी बीवी को गुस्से में बोला, रोती हुई उस लड़की को अपने साथ ले गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी, जिसकी वजह से याकूब नियाज़ी के मुलाज़िम बहराम का कुछ नहीं कर पाए। याकूब नियाज़ी घर के पहुँचने से पहले बहराम अपने असिस्टेंट मेहरान को अपने अपार्टमेंट में रवाना कर चुका था, जहाँ से ज़ख्मी हालत में अफान को अस्पताल पहुँचा दिया गया था। फ्लोर पर लगे कैमरे में हुई सारी कार्रवाई मौजूद थी, जिसे बहराम के ऑर्डर पर बहरान अपने पास सेव कर चुका था। याकूब नियाज़ी का एक नहीं बल्कि 3-4 फार्म हाउस इस शहर में मौजूद थे। इसे खबर नहीं थी कि याकूब नियाज़ी के आदमी हरम को कौन से फार्म हाउस लेकर गए हैं। इस वक्त हरम को हरम की फ़िक्र थी। उसको जो सही लगा उसने वही किया। वो याकूब नियाज़ी की बेटी को अपने साथ ले आया, जिसके आधे घंटे बाद डिप्टी साहब की कॉल उसके मोबाइल पर आने लगी। तुम फौरी तौर पर याकूब नियाज़ी की बेटी को याकूब नियाज़ी के घर छोड़कर मेरे पास आओ। दिस इज़ माई ऑर्डर। कॉल रिसीव करते हुए ही साथ ही उसे डिप्टी साहब की आवाज़ सुनाई थी। सॉरी सर, मैं आपके ऑर्डर तब तक फॉलो नहीं कर सकता जब तक मेरी बीवी सही सलामत मेरे पास नहीं आ जाती। बहराम डिप्टी साहब के ऑर्डर को रद्द करता हुआ एहतरामन बोला। अब बीच मुश्किल से आधा घंटा गुजरा, यकीनन ये खबर ऊपर तक पहुंच चुकी थी। तुम याकूब नियाज़ी के साथ पर्सनल नहीं हो सकते। एएसपी बहराम अब्बासी अब डिप्टी साहब की बात सुनकर बहराम को आंख लग गई। सर, पर्सनल मैं नहीं, पर्सनल पर वो उतर आया है। मैंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए सबूतों के साथ उसके भाई पर हाथ डाला था, जिसके बदले उसने मेरी वाइफ को उठा लिया। अगर मेरी फैमिली मेरी जॉब की वजह से मुताज़ है तो मैं याकूब नियाज़ी की फैमिली को नहीं बख्शूंगा। बहराम ने बात करते हुए एहतराम का दामन नीचे, मगर गुस्से और गज़ब से इसका चेहरा सुख हो रहा था। ये पूरा का पूरा निज़ाम ही ऐसा था, जब भी कोई ऐसे बड़े मुजरों में हाथ नहीं डाला जाता, पीछे नहीं तो पीछे इनकी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। बहराम ने कॉल काट कर अपना मोबाइल बंद कर दिया। याकूब नियाज़ी कमरे में टहलता हुआ बेताबी से अपने आदमी को इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसकी कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। जैसे कि उसने सोचा था वो इसके आदमी ने किया, यानी वो एएसपी की बीवी को उठाकर उसके पास ला रहे थे। इसका प्लान ये था कि एसपी बहराम अब्बासी को ब्लैकमेल करके उसे अपने भाई के बारे में मालूम करेगा, मगर उसका प्लान तब उल्टा जब याकूब नियाज़ी की बीवी की कॉल उसके पास आई थी। बहराम की ज़रूरत पर उसका फ़ोन कॉल उठा था। वो एसपी साहब की मासूम 15 साल की बेटी को सरेआम उसके घर से ले जा चुका था, जिसका इस सारे वाक़ये से कोई लेना-देना नहीं था। उसकी बीवी ने याकूब नियाज़ी को फ़ोन पे काफ़ी लान-तान की थी। उसे बहराम की दी गई धमकी भी ये बताई थी। वो ये भी कहा अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार वही यानी याकूब नियाज़ी होगा। याकूब नियाज़ी बहराम की चालाकी पर बुरी तरह बेचैताब खाकर रह गया। अब उसे अपने भाई बॉबी से ज़्यादा अपनी मासूम बेटी की परवाह थी। याकूब नियाज़ी टेंशन से कमरे में चक्कर काट रहा था, तब उसके दो आदमी एएसपी की बीवी को अपने साथ लेकर आए। क्या हुआ इसे? एक आदमी ने हरम को बेहोश वजूद को सोफे पर लिटाया डाला तो याकूब नियाज़ी माथे पर डालता हुआ अपने आदमी से पूछने लगा, सर ये खौफ से बेहोश हो चुकी है। उसका आदमी याकूब नियाज़ी को बताने लगा। इससे पहले याकूब नियाज़ी अपने आदमियों को दोबारा हरम को वापस छोड़ने का हुक्म देता, उससे पहले हरम ने अपनी आंखें खोली और टेबल पर रखे हुए चंद औजारों में से छुरी उठाई। "ए लड़की, क्या कर रही हो? छुरी वापस रख दो, तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।" याकूब नियाज़ी हरम की फुर्ती देखकर बौखला गया। उसके करीब आता हुआ कहने लगा, "दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना।" हरम छुरी का रुख याकूब नियाज़ी की तरफ करती हुई तेज़ी से सोफे से उठकर उसके पीछे दीवार से चिपक गई। याकूब नियाज़ी के दोनों आदमी भी याकूब नियाज़ी की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगे। हरम को इन दोनों से खौफ आने लगा। वो अकेली और 3 आदमी। देखो लड़की, तुम्हें अभी फ़ौरन तुम्हारे शौहर के पास पहुँचा दिया जाएगा। मेरा यकीन करो, ये छुरी फेंक दो। अगर एएसपी की बीवी को कुछ हो जाता तो एएसपी के पास उसकी बेटी मौजूद है, और याकूब नियाज़ी अपनी बेटी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। डिप्टी की कॉल का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हरम को उस आदमी की बात पे यकीन नहीं आया था। अगर ये आदमी उसको बहराम के पास पहुँचाने का इरादा रखे हुए थे, तो उसको यहाँ पर लाया ही क्यों गया था? इससे पहले वो तीनों आदमी उस पे हावी हो जाते। हरम ने छुरी का रुख अपने पेट की तरफ किया। "जल्दी पकड़ो इसे, छुरी छीन लो इससे।" याकूब नियाज़ी अपने दोनों आदमियों से बोला, जिन्होंने हरम को काबू करना चाहा। नहीं, हरम के हाथ से छुरी लेने के चक्कर में हरम छुरी से अपनी कलाई को ज़ख्मी कर चुकी थी। "ये क्या हो गया? अस्पताल लेकर चलो इस लड़की को। वो एएसपी मेरी बेटी के साथ कहीं कुछ ना कर दे।" याकूब नियाज़ी अपने दोनों आदमियों पर बुरी तरह चीख रहा था। हरम, जो कि पहले ही खौफज़दा थी, अपनी कलाई से तेज़ी से खून निकलते देखकर वो खौफ के मारे फ़र्श पे गिरती हुई अपने हवास खोने लगी। 3 घंटे गुज़र चुके थे, मगर हरम का कुछ अता-पता नहीं था। बहराम के ऑर्डर पर मेहरान पुलिस को लेकर बारी-बारी याकूब नियाज़ी के तीनों फार्म हाउस में पहुँचकर तलाशी ले चुका था, मगर नतीजा कुछ भी नहीं था। बहराम को समझ नहीं आता कि वो कहाँ से हरम को ढूँढ निकाले। उसे यूँ बैठना फिज़ूल लग रहा था। याकूब नियाज़ी की बेटी, जो इस वक़्त उसके सामने बैठी रोते-रोते खामोश हो चुकी थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। बहराम को उसकी लड़की को देखकर हरम की फ़िक्र होने लगी थी। वो भी तो इसी लड़की की तरह खौफ़ज़दा परेशान होगी। बहराम को अपना गुस्सा
कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो रिवॉल्वर में गोलियाँ चेक करने लगा। अब वो याकूब न्याज़ी के घर दोबारा जाने का इरादा रखता था। रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। बहराम उस लड़की पे गुस्से में बुरी तरह धड़ा तो वो लड़की सहम कर चुप हो गई। तुम्हारा बाप एक नंबर का ज़लील, कमीना, घटिया इंसान है जिसका किरदार का तुम्हारा बाप मालिक है। ये गालियाँ भी उसके बग़ैरत के सामने मुहज़्ज़ब मालूम होती है। अगर मैं तुम्हारे बाप के कारनामे और रंगीन मिज़ाजी के किस्से तुम्हें सुनाने बैठ जाऊँ तो तुम्हें अपनी पैदाइश पे शर्म आएगी। औरतों के साथ खेलकर उनकी दलाली करने वाला ख़लीस आदमी है तुम्हारा बाप। जिसे शायद अपनी बेटी की इज़्ज़त और जान की परवाह नहीं है। मेरी बीवी को तुम्हारे बाप ने उठाया है। अगर इसने अगर इसने मेरी बीवी को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाया ना तो मैं तुम्हारे बाप की जान ले लूँगा और इस तरह रोना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दूँगा। बहराम से सहमी उस लड़की से बोला, कमरे से जाने लगा। तभी फ्लैट की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खुलने पे याकूब नियाज़ी उसके गार्ड को अपने फ्लैट के दरवाजे पे देखा। बहराम का खून खौल उठा। वो याकूब नियाज़ी पे भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। बता मुझे, कहाँ है मेरी बीवी? क्या किया तूने इसके साथ? बोल। बहराम अपने शिकंजे में याकूब नियाज़ी की गर्दन को पकड़े शदीद गुस्से में पागल हो चुका था। याकूब नियाज़ी खुद और उसके का गार्ड चाह कर भी बचाव करने में नाकाम थे। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी बीवी के साथ, मेरा यकीन करो। उसे जैसे लेकर गया था वो बिल्कुल वैसी है, पाक और अनछुई, मगर उसने डर के मारे खुद अपनी जान लेने की कोशिश की है। बहराम की मजबूत गिरफ्त में मौजूद याकूब नियाज़ी का काफ़ी मुश्किल से उसे बता पाया। उसकी बात सुनकर बहराम उसे अपने शिकंजे से आज़ाद करता हुआ शॉक्ड हो गया। जान लेने की कोशिश की, कहाँ है इस वक्त हरम? बहराम सदमे से और गुस्से की कैफियत में एक बार फिर याकूब नियाज़ी का गिरबान पकड़कर उससे पूछने लगा। इसने अपने हाथ की कलाई की नस काट लिया, खून ज़्यादा बह गया तो वो अस्पताल में एडमिट है। मेरा यकीन करो, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। याकूब नियाज़ी जो काफ़ी रिसोर्सेज़ रखने के बावजूद सिर्फ इसलिए बहराम के सामने बिगी बिल्ली बना हुआ था क्योंकि उसकी बेटी बेरहम एएसपी के पास मौजूद थे। इसने बहराम को अस्पताल का एड्रेस भी दिया जहाँ हरम मौजूद थी। पापा, इतने शोर की आवाज़ सुनकर याकूब नियाज़ी की बेटी कमरे से बाहर आई और याकूब नियाज़ी के गले लगकर रोने लगी। जबकि बहराम अस्पताल के दिए गए एड्रेस पे कॉल करके डॉक्टर से हरम के बारे में कंफर्म करने लगा। डॉक्टर के मुताबिक हरम के हाथ की नस काफ़ी गहरी कट गई थी जिसकी वजह से उसे काफ़ी खून ज़ाया हो चुका था और इस वक्त बेहोश थी मगर खतरे से बाहर थी। मैं तुम्हारी तरह का नीचे ज़ात का मर्द नहीं जो दूसरों की इज्जत पर गलीज़ और मैली नज़र रखते हैं। पूछ लो अपनी बेटी से, कोई भी अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं की मैंने इसके साथ और इसकी इज्जत भी महफूज है। लेकिन तुमने मेरी इज्जत पर गंदी निगाह डाली, उसके लिए गलीज़ सोच अपने ज़हन में रखी, इसे अपने आदमियों से उठवाया। तुम्हारी वजह से वो इस वक्त तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है। इन सब बातों के लिए तुम सज़ा के मुस्तहिक हो और वो सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। बहराम ने रिवॉल्वर निकालकर याकूब नियाज़ी पे फायर किया। पापा, याकूब नियाज़ी गोली लगने से फर्श पे गिरा। उसके जिस्म से खून फव्वारे की सूरत निकलने लगा जिसे देखकर याकूब नियाज़ी की बेटी खौफ के मारे चीखती और रोने लगी जबकि याकूब नियाज़ी का गार्ड उसे संभालने की कोशिश करने लगा। बहराम को इस सारे किस्से में दिलचस्पी नहीं थी इसलिए वो लोगों को वहीं छोड़कर अस्पताल के लिए निकल गया। हरम मेरी जान, अस्पताल के कमरे में जैसे ही हरम को होश आया इसे देखकर बहराम बेसख्ता कुर्सी से उठा और हरम की तरफ बढ़ा। हरम के बेड से उठने से पहले ही वह हरम के चेहरे पर झुकता हुआ हरम की पेशानी पर होठ रखकर इसके करीब बेड पे बैठ गया। मैं आपको देख सकती हूँ बहराम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे अच्छा लग रहा है जैसे मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। हम दोनों कभी नहीं मिल पाएँगे। हरम अस्पताल के बेड पे लेटी बेयकीनी की कैफियत में अपने सामने बैठे बहराम को देखकर बोली, जो उसके लिए हद दर्जा फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। अपने लिए फ़िक्रमंद होना उसके चेहरे से महसूस कर सकती थी। हरम की बात सुनकर बहराम ने हरम का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया। ऐसी सोच क्यों लाई थी तुम अपने ज़हन में? अभी तुमको पापा से पाया है, ऐसे ही खो देता, अपनी जान की बाजी लगा देना मगर तुमको ढूँढ लेता। बहराम उसका ज़र्रा होता हुआ चेहरा देखकर बोला, आज कहीं न कहीं इसकी वजह से उसकी बीवी प्रॉब्लम में आई थी और वो जिस तकलीफ़ से गई थी ये सोच के बहराम को तकलीफ़ हो रही थी। साथ ही उसके दूर जाने की सोच बहराम को हरम के करीब ले आई थी। आप मुझ पे तो गुस्सा तो नहीं होंगे? फिर आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे? मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज ये सब कुछ हो गया। आपने मुझे समझाया भी था। हरम को याद आने लगा एक बार नहीं बहराम ने उसे कई बार फ्लैट से निकलने के लिए मना किया था मगर इसके बावजूद उसे बेवकूफ़ी सहज़ हुई थी जिसका नतीजा उसे किस अंदाज़ में बर्दाश्त करना पड़ा। मैं चाहूँ भी तो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, ना ही तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाले पर शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि तुम इस वक़्त मेरी आँखों के सामने मौजूद हो। बहराम अपना हाथ हरम के गाल पे रखता हुआ पूरी ईमानदारी से सच्चाई बयान करता हुआ हरम का चेहरा देखने लगा। आज उसे ये चेहरा एक बार दोबारा अपने दिल के करीब महसूस हुआ था। इस वक़्त अपने दिल में क्या महसूस करता, शायद चाह कर भी उसे शेयर नहीं कर पाता। बहराम में यहाँ कैसे आई और अफ़ान उसको तो उन लोगों ने गोली मार दी थी। हरम अपने दिमाग पर ज़ोर डालती बहराम से पूछने लगी। खून बहता देखकर अपने हवासों में नहीं रहती, बेहोश होने की वजह से कुछ याद नहीं रहा था। वो कैसे यहाँ तक पहुँची? इस वक़्त वो चेहरे से काफ़ी परेशान लग रही थी। तब बहराम ने झुककर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। परेशान मत हो अफ़ान, परेशान मत हो। अफ़ान को गोली ज़रूर लगी है लेकिन बर वक़्त ट्रीटमेंट की वजह से अब उसकी तबीयत ठीक है। अब तुम मज़ीद कुछ नहीं सोचो, तुम एक-दूसरे के
पास और तुम एक दूसरे के पास है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। वो कैसे यहाँ पहुँची है, बहराम ने उसके पीछे क्या किया, कुछ किया या थोड़ी देर पहले वो क्या करके आ रहा है, ये सारी बातें वो हमको बताने का इरादा नहीं रखता था। आपका मतलब हम दोनों के बीच अब सब कुछ हो चुका है। हरम अपने चेहरे की बेहद करीब इब्राहिम का चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, इस वक्त इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा हुआ था। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, क्या तुम इस बात का यकीन चाहती हो? बहराम उसके गुलाबी होठों को देखता हुआ हरम से पूछने लगा। उसके गुलाबी होठ जो खुश हो रहे थे, वो बहराम से यकीन भी चाहती थी और बहराम का यकीन भी चाहती थी। वो जानती थी कि बहराम उसको इस वक्त कैसे यकीन दिलाने वाला था। उसके बावजूद उसने बहराम की बात को इकरार में सर हिलाया। हरम के इकरार पर बहराम ने नरमी से अपने होठ उसके गुलाबी होठ पर रख दिए। हरम ने इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर ली और बहराम के होठों का लफ्ज इसकी सांसों की महक अपने अंदर अंदर उतरता हुआ महसूस कर रहा था। बहराम ने अपने दोनों हाथ उसकी चेहरे से बालों तक ले जाते हुए इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर हरम का चेहरा ऊंचा किया। वो हरम की ठोड़ी पर होंठ रखता उसकी गर्दन पर झुका। तब हरम ने अस्पताल का एहसास करते हुए आस्तीकी से पीछे किया। बहराम पब्लिक बहराम पब्लिक प्लेस का सोचकर ही शराफत का मुजाहरा करते हुए पीछे हुआ था, लेकिन यूं हरम के नजर झुकाने पर वो उसकी गुलाबी रंगी पड़ती रंगत गौर से देखने लगा जो उसके बहराम उसके यूं रंग बदलती कैफे से लुत्फानंदाज होता हुआ मुस्कुरा दिया। फिर उसकी नज़र हरम के हाथ की कलाई पर पड़ी जिससे वो अब तक नजरें चुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट थमी। तुमने उस दिन कहा था तुम्हें मौत से डर लगता है, तो फिर ये क्या हरकत की तुमने? क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी यह हिमाकत तुम्हें खतरे में भी डाल सकती थी? बहराम उसकी कलाई देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा। लो जी, प्यार मोहब्बत ख़त्म, आ गए एएसपी साहब अपने पुराने वाले स्टाइल में वापस। हरम ने हरम ने दिल ही दिल में सोचा, तो और क्या करती, डर लग रहा था मुझे उन आदमियों से। बेशक मुझे अपनी जान प्यारी है, मगर मेरी जान मेरी इज्जत से बढ़कर तो नहीं है ना। हरम ने आम से अंदाज में बहराम को एक बात बोली जो बहराम के दिल को छू गई। वो खामोशी से हरम का चेहरा देखने लगा। उसकी बोली हुई बात इतनी छोटी भी नहीं थी। आज इसे अपनी बीवी और दूसरी बीवी में वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ था। बेशक उन दोनों के चेहरे एक जैसे थे, मगर दोनों के किरदारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एंजिल ना तो उसकी इज्जत का पर्दा रखा था, ना ही अपनी इज्जत का। वो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्द को खुश करती हुई आई थी, मगर जबकि आज हरम ने साबित कर दिया कि उसके नतीजे उसकी जान से बढ़कर उसकी इज्जत थी। यही बात आज इसने अपने अमल से साबित की थी। वो आज बहराम की नज़र में कितनी बुलंद और मुअत्तर हो चुकी थी, इस बात का अंदाज़ा हरम नहीं लगा पाती। ना ही बहराम ने उसके सामने अपना ख्याल जाहिर किया। ऐसे क्या देख रहे हैं, बताया ना, कब जाएंगे घर वापस? हरम ने उसकी अपनी तरफ मुस्तकिल देखते हुए पूछा और उठकर बैठना चाहा तो बहराम ने उसके तकिए के सहारे बैठने में मदद दी। अभी घर जाके तुम्हें क्या करना है? मेरे साथ यहाँ से जाओगी, फिर वहाँ पहुँचकर अपने चचा के घर जाने की जिद करोगी? बेहतर यह है कि चुप करके यहीं रहो। बहराम उसको बोलता हुआ कमरे से बाहर डॉक्टर के पास से बात करने निकल गया। तुम एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठकर इतने काबिल ऑफ़िसर होने के बावजूद आखिर कैसे इतनी संगीन गलती कर सकते हो बहराम? क्या तुम याकूब नियाज़ी पे फायर करते वक़्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या कुछ दाँव पे लग सकता है? सुबह ही वो कमिश्नर साहब के ऑफ़िस में मौजूद हमेशा की तरह उनके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ ही नहीं था, बल्कि हाथ बांधे खामोश खड़ा था। कमिश्नर साहब की बातें सुनकर इसने अपना सर नहीं झुकाया था। सर, कल मेरा सब कुछ दाँव पे लगा हुआ था, मेरी वाइफ़, मेरी फ़ैमिली। आप खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचिए। बहराम ने अपने सीनियर ऑफ़िसर के सामने बोलते हुए तमीज़ का दामन नहीं छोड़ा था, मगर उसे ताज्जुब था इस सारे मामले में सिर्फ उसी को कैसे कसूरवार ठहरा सकते थे। मेरे सामने यूँ जज़्बाती बातें करके मज़ीद बेवकूफ़ी मज़ाहे करो मुझ पर। जो तुम्हारी सीट है उस पर जमे रहने के लिए आदमी को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ना कि इमोशनली। तुमने अब डिप्टी कमिश्नर के कहने पर भी उनके ऑर्डर फॉलो नहीं किया। अब इन्हें भी तुमसे काफ़ी शिकवे लाहक हो चुके हैं, क्योंकि वो लायक ऑफिसर थे, हर किसी का दिल अजीज़ है। इसलिए कमिश्नर साहब ने बहराम को उसकी दूसरी गलती के बारे में भी बता दिया जिस पर वो ज़ब्त नहीं कर सका। सर, मैं अपनी डिप्टी साहब के ऑर्डर को मानते हुए कैसे याकूब नियाज़ी की बेटी को छोड़ देता, जबकि मेरी अपनी वाइफ उस याकूब नियाज़ी के। बहराम की बात मुकम्मल होने से पहले ही कमिश्नर साहब ने उँगली दिखाई तो बहराम खामोश हो गया। चलो मैं मान लेता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ ठीक नहीं था, मगर तुमने उसका पूरा बदला लेते हुए याकूब नियाज़ी के फार्म हाउस में बगैर सर्च वारंट के पुलिस को भेजा, उसकी बेटी को घर से ज़बरदस्ती उठा लाया, फिर उसके बाद याकूब नियाज़ी पे गोली चलाई। यानी कि रूल्स को फॉलो करना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। अब तक के तुम्हारे इतने शानदार कैरियर को देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा, मगर मैं मजबूर हूँ तुम्हें एक माह के लिए सस्पेंड करने पर। कमिश्नर साहब ने बोलते हुए सामने पर्चे पर साइन किए तो बहराम एकदम बोल पड़ा, सर प्लीज़, ये मेरे साथ ज़्यादती है। उसका जुमला कमिश्नर साहब की तेज़ आवाज़ के साथ आगे मुकम्मल ना हो सका। एएसपी बहराम, अब आज से दफ़ा 358 लगने पर, रूल्स को फॉलो न करने पर आपको एक माह के लिए नौकरी से मुअत्तल किया जाता है। इस दैट के लिए अब की बार कमिश्नर साहब के लहजा बगैर लचक लिए होता है। बहराम सब करता हुआ बोला, यस सर। कमिश्नर साहब को सलूट करते हुए जो टेबल पर रखा हुआ पर्चा उठाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया। उसको गुस्सा इस कदर शदीद है कि
जब्त न करते हुए उसने जोरदार मुक्का सामने दीवार पर मारा, जिस पर स्टाफ का ऑफिसर इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। सबको नजरअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। कल के वाकये की पूरी तफसीलात उसके डिपार्टमेंट में भेज चुकी थी। कैसे उसकी बीवी को याकूब ने उठाया, जिसके बदले में उसने याकूब न्याजी बेटी को 3 घंटे अपने पास रखा। अपनी बीवी के जख्मी होने की वजह से उसने गुस्से में याकूब न्याजी पे फायर किया। याकूब न्याजी की जान तो बच गई, मगर हालत अभी भी नाजुक थी। 2 दिन बाद याकूब न्याजी के छोटे भाई अरसल न्याजी उर्फ बॉबी को फांसी हो जाती और याकूब न्याजी की हालत इसे इजाज़त नहीं देती कि वो अपने भाई की जान बचाने के लिए अपने हाथ पाँव चलाता। एक तरह से वो अपने मकसद में कामयाब हुआ था। वहीं उसे अपने मुअत्तल होने का भी शदीद अफसोस था। अपनी जॉब के आगाज़ से ये पहली पनिश थी जो उसको दी गई थी, वो भी इस आदमी फायर करने के लिए जो पहले ही से पुलिस के रिकॉर्ड में और फाइल्स में मौजूद था, जिस पर चंद माह पुलिस को एक्शन लेना था। अगर यही गोली वो किसी छोटे आदमी पर चलाता तो इस केस को उसके बड़े अफसर रान बहुत आराम से दबा लेते। ड्राइविंग करते हुए उसका मूड काफ़ी ख़राब था, मगर कभी कमिश्नर साहब की मजबूरी थी, इन्हें अपने पर जवाब देना था। बहराम हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करते हुए सोच रहा था, तब उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी जो उसके देखने से पहले अपना चेहरा आंचल से छुपाकर गेट से बाहर निकल गई थी। लेकिन वो आंखों से अपना पहचान चुका था। हराम बेसाख्ता बहराम के मुंह से निकला, हराम यहाँ क्या कर रही है? ज़्यादा खून बहने की वजह से कल तक तो इसे इतनी कमज़ोरी थी कि वो 2-4 कदम भी मुश्किल से चल रही थी, और इस वक्त वो हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में बहराम सोचता हुआ उसके पीछे जाने लगा। मगर अचानक उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया। ओह नो, एंजिल शिट! वो ज़ोर से चीखता हुआ उसके पीछे जाने की बजाय भागता हुआ अस्पताल के अंदर हब के पास जाने लगा। कल से उसके ज़हन में किस कदर परेशान थका हुआ था, एंजल की तरफ तो उसका ज़हन भी नहीं गया था। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम के बाहर उसने करम हसब सिपाही की ड्यूटी लगाई थी, जो इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। बहराम तेज़ी से कमरे के अंदर आया। खाली कमरे में नर्स को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। कहाँ है मेरी वाइफ? नर्स के पास आकर इतनी ज़ोर से चीखा कि नर्स नर्स पूरी तरह सहम गई। बहराम तब उसे अपनी पूछ से हरम की आवाज़ आई। बहराम ने देखा वो वॉशरूम के दरवाजे पे मौजूद थी, जिसे देखकर बहराम ने तो इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर खुदा का शुक्र अदा किया। वो तेजी से हरम की जानिब बढ़ा, उसे अपने सार में लिया। हरम जो वॉशरूम में जाते हुए बुरी तरह हाँफ गई थी, बहराम के इस अंदाज में बुरी तरह बौखला गई। नर्स यही मौजूद है, आपको देख रही है। बहराम पीछे हटे। हरम ने खुद भी शर्मिंदा होकर आहिस्ता आवाज़ में बहराम को होश दिलाया। देखने दो मुझे, इत्मीनान करने दो कि तुम बिल्कुल सही हो। बहराम उसे अपने सार से आज़ाद करता हुआ हरम का चेहरा ताम के उसे देखता हुआ मज़ीद तसल्ली करने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहराम क्या हो गया है आपको? हरम को लगा वो कुछ ज़्यादा ही एहसास हो रहा था, इसलिए वो हैरत ज़दा होकर बहराम से पूछने लगी, आई थिंक तुम कल ठीक कह रही थी कि हमें अस्पताल की बजाय अपने घर चलना चाहिए। मैं डॉक्टर से बात कर कर आता हूँ। बहराम हरम को देखता हुआ बोला, क्योंकि वो इसके लिए मज़ीद कोई ख़तरा मोल नहीं सकता था। डॉक्टर अभी राउंड पर आए, चेक करके गए, कल तक ये डिस्चार्ज करेंगे वो। बहराम हरम को थाम कर आहिस्ता से कदम उठाता हुआ बेड की तरफ चले जाने लगा, तो हरम उसको बताने लगी, मैं कर लेता हूँ डॉक्टर से बात, तुम अपने माइंड में रखो, हमें थोड़ी देर में बाद यहाँ से निकलना है। फिर हम उसे बेड पे बिठाता हुआ बोला, तो नर्स इंतजार में खड़ी थी। हरम के बेड पे बैठते हुए उसकी कलाई की ड्रेसिंग करने लगी। कहाँ पर मौजूद थे तो मैंने तुम्हें रूम से बाहर ड्यूटी के लिए खड़ा किया था, या फिर आवारागर्दी करने के लिए? बहराम हरम की कलाई पर छुरी का निशान देखता हुआ गुस्से में अपने मोबाइल पर कमर को झड़कने लगा। नर्स ने सर उठाकर इस गुस्से के साथ तेज से इंस्पेक्टर को एक बार फिर देखा, जो शायद से अपनी बीवी के से ही सुकून से बात करता था। इतने में वार्ड बॉय रूम में खाने की ट्रे लेकर आया, जिसे बहराम ने वैसे ही वापस करवा दी, क्योंकि यहाँ एंजल का मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके पीछे ज़रूर कोई वजह थी। वो हर चीज़ को शक के दायरे में देख रहा था। हरम के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हरम का अस्पताल की बजाय उसके साथ इसके अपार्टमेंट में रहना ठीक था। मुझे भूख लग रही है बहराम, आपने खाना भी नहीं खाने दिया मुझे। नर्स के वहाँ से जाने के बाद हरम बहराम से बोली, खाना बाहर से पैक करवा लेंगे, यहाँ मालूम नहीं खाने का कैसा टेस्ट हो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तुम जब तक रेस्ट करो। बहराम हरम को बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर मौजूद बहराम से मुआवज़त करने लगा, जिसे वो गुस्से में घूरता हुआ डॉक्टर के पास चला गया। घर आने के बाद गुस्से में उसने हाथ में मौजूद बैग टेबल पर फेंका और चादर उतार कर धूल छाली। उसे घर आते देखकर जोजो उसके नज़दीक आया। चलो जाओ जोजो इस वक्त यहाँ से। वो बेजार होकर अपने पले हुए कुत्ते से बोली। आज उसे कितना ज़बरदस्त चांस मिला था, जो बहराम के जल्द अस्पताल आने पर गंवा चुकी थी। अपनी कलाई पर मौजूद नकली जख्म को देखकर एंजल वो सोचने लगी। अस्पताल के रूम से बाहर खड़े पहरेदार को भी वो ड्राइवर के साथ बातों में लगवा चुकी थी। सिर्फ अपने उसे हरम के कमरे में जाकर हरम को बेहोश करके अपने आदमियों की मदद से उसे कमरे बस से बाहर निकलवाना
आना था। वो आदमी जो पहले इसकी मदद के लिए अस्पताल के यूनिफॉर्म में मौजूद वहीं पर काम करने वाले लग रहे थे। हरम को अस्पताल के दूर से निकलने के बाद वो लिबास तब्दील करके बेड पे लेट जाती, मगर इससे पहले अस्पताल के मेन गेट पर खड़े एंजल के आदमी ने कॉल करके उसे बताया कि बहराम की गाड़ी अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुकी है। इसलिए एंजल को मुँह छुपाकर अस्पताल से जल्द बाहर निकलना पड़ा। वो अपनी तरफ से बहराम को ज़रा सा भी शक में मुब्तला नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये बात की खाल निकालने वाला मर्द था। आज तुम्हारी बीवी बच गई, मगर अगली दफ़ा मैं कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो लोशन की मदद से नकली जख्म को साफ करते हुए सोचने लगी। बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए हरम को अपनी जगह बहराम के साथ बर्दाश्त करना। पूरा हफ्ता गुजर चुका था हरम को अस्पताल से बहराम के साथ उसके फ्लैट में आए हुए। इस एक हफ्ते में उसने बहराम को सिर्फ अपनी केयर करते हुए एक अलग रूम में देखा था। वो पुलिस स्टेशन भी जा रहा था, मुसलसल हफ्ते भर से घर पर मौजूद था। पूरे हफ्ते बाद आज वो अपने आप को गुजरे दिनों के मुकाबले में बेहतर महसूस कर रही थी। वो इस काबिल हो चुकी थी कि उठकर चलती फिरती। बहराम के मना करने पर हरम ने इस वाक़े का जिक्र ना तो जिया से किया, ना ही अपने चिच्चा जान की फैमिली से। आज शाम जब बहराम घर से निकला तो उसके पीछे निकी और सचिन से मिलने आ गए। बहराम की वापसी लेट आमद पर वो लोग थोड़ी देर बैठ गए और बहराम उन दोनों से बहुत अच्छी तरीके से मिला, खासकर असद से। अब मालूम नहीं उन दोनों के जाने के बाद बहराम उसके साथ कैसा रवैया रखता। हरम के दिल में वैसे ही ख्याल आया, कहाँ चले गए थे आप शाम में इतनी देर के लिए। इन दोनों के जाने के बाद हरम बहराम से पूछने लगी और साथ ही बहराम का ड्राई क्लीन हुआ यूनिफॉर्म वार्डरोब में रखने लगी। एक ज़रूरी काम था, किसी के बारे में कुछ मालूमात करवानी थी। फिर वहाँ से अफान के पास चले गए, सोचा उसको भी देख आऊँ। बहराम हरम को बुत बताता हुआ उसके पीछे चलकर किचन तक आया, जहाँ ट्रॉली में रिफ्रेशमेंट का सामान मौजूद है, जो थोड़ी देर पहले ही हरम ने असद और निकी के सामने रखा था। हरम सारी चीज़ें बॉक्स में डालती हुई बोली, कैसी है अफान की तबीयत? आप मुझे भी साथ दे जाते, मैं भी देख लेती उसको। हरम की बात सुनता हुआ बॉक्स में रखे हुए नगेट उठाकर खाता हुआ बोला, पहले तुम खुद की तबीयत तो ठीक कर लो, फिर चली जाना किसी दिन। अफान की अम्मी बहुत अच्छी नेचर की, वो पूछ रही थी तुम्हारा अफान तो तुम्हारे वली में अपनी किसी प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आ सका था, मगर उन्होंने शिरकत की थी। मैंने तुम्हें उनसे मिलवाया भी था, मालूम नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। बहराम ने भरम को बर्तन वॉश करते देखा तो किचन में छोटा मोटा फैला हुआ काम खुद निपटाने लगा। तारुफ करवाया था आपने मेरा, इनसे मुझे याद आ गया, और आप बार बार अपनी तबीयत का बोल रहे हैं। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी ये बताइए, खाना गर्म करूँ आपके लिए? दूसरे कामों में लगकर वो भूल ही गई थी कि बहराम को खाने का भी पूछना था। पानी का टैप बंद करती हुई वो बहराम के लिए प्लेट में खाना निकालने लगी। वैसे ही बहराम उसके हाथ से प्लेट लेता हुआ बोला, मेरे मना करने के बावजूद अफान की अम्मी ने ज़बरदस्ती खाने पे रोक लिया। मैं खाना खा चुका हूँ, तुम अपने लिए खाना निकाल लो। बहराम हरम से बोलता हुआ उसके दोनों हाथ थाम चुका था, जो बर्तन धोने की वजह से ठंडे हो रहे थे। निकी और सच भाई के साथ अच्छा खासा रिफ्रेशमेंट कर लिया था, अब खाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। एक बात पूछूं आपसे, निकी और सच भाई का यहाँ पर आना आपको बुरा तो नहीं लगा? हराम हरम बहराम का चेहरा देखकर पूछने लगी। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में छुपाए अपने सीने पर रखकर हरम को देखने लगा। तुम्हें मेरे रवैये से महसूस हुआ कि मुझे इन दोनों का आना बुरा लगा होगा? अगर असद निकी के बगैर भी तुमसे यहाँ मिलने आता मुझे तब भी उसके आने पर कोई इतराज़ नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारा खालाजाद है और निकी तो है ही तुम्हारी पक्की वाली दोस्ती, पक्की वाली सहेली। बहराम की बात सुनकर हरम मुस्कुराकर उसे देखने लगी। सॉरी, मुझे ऐसा कुछ आपसे पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि बकौल आपके हमारे दरमियान तो सब कुछ ठीक हो चुका है। हरम मुस्कुराती हुई बोली तो बहराम भी मुस्कुरा दिया। हमारे दरमियान तो सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अब मैं तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रहा हूँ। तबीयत ठीक कर लो अपनी। बहराम ने बोलते हुए इसके दोनों हाथों को अपनी कमर पर लिपटा खुद भी हरम को अपने महसार में ले लिया था। मेरी तबीयत अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है। बहराम, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? वो उसकी तबीयत को लेकर इतना ज़्यादा फिक्रमंद था कि हरम उसके साथ में बहराम को देखकर यकीन दिलाती हुई बोली, सोच लो, तुम खुद ही कह रही हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। बहराम हरम को जताने वाले अंदाज से बोलता, हरम उसका चेहरा देखने लगी, जिसमें खैज़ मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से हरम को समझ में नहीं आई। झूठ तो नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे, अब बिल्कुल मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, तब भी ऐसा ही बोल रही हूँ। आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हरम बहराम को बोलने के साथ उसकी मुस्कुराहट पर टोकती हुई बहराम से पूछने लगी, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं अब कहने वाला हूँ, मुझे पूरा यकीन है मेरी उस बात पे तुम पूरी तरह शर्मा जाओगी। बहराम के इस तरह बोलने और उसकी नज़रों का मफ़हूम समझ के हरम ने उसके हाथ अपनी कमर से हटाए, अपना रुख मोड़कर कैबिनेट पे प्लेटें सेट करने लगी। उसके हाथों की हरकत तब तक हुई जब बहराम उसके पूँछ पे खड़ा होकर हरम को अपने साथ में लेकर उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, मैं आज हाँ मैं आज रात हम दोनों के बीच सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाला हूँ मैं। बहराम की बात सुनकर हरम के हाथों में मौजूद प्लेट गिरते गिरते बची। बहराम ने प्लेट को पकड़कर कैबिनेट में रखा और उसका रुख अपनी तरफ किया, जो बहराम की बात पर सुर्ख चेहरे लिए अपनी नज़रें झुका गई थी। फिर बताओ मुझे। बहराम हरम को अपने साथ में लेता उससे से उसकी मर्जी पूछने लगा, क्या हम दोनों अभी क्लोज नहीं हैं? हरम बहराम के सीने पे मुँह छुपाती हुई उससे पूछने लगी, मुझसे ये बात क्यों पूछ रहा था भला?
वो उस मामले में क्या बोलती, क्लोज तो है मगर इस तरह नहीं, ये तुम भी जानती हो मैं क्या चाह रहा हूँ तुमसे, यहाँ मेरी तरफ देख कर जवाब दो। बहरहाल हरम को अपने एहसास से आज़ाद कराता हुआ उसका चेहरा ऊँचा करके अपने चेहरे के करीब कर चुका था। क्या जवाब दूँ आपको, मुझे नहीं मालूम आप क्या बोल रही हैं। वो इसकी बातों और ख़ासकर नज़रों से नर्वस हो रही थी। भला क्या बोलती? तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछ रहा हूँ मिसेज़, क्या तुम राज़ी हो? बहरहाल हरम को नर्वस देखकर खिलकर बोला, लेकिन वो साथ ही इसके चेहरे के बिखरे रंग भी ज़ाया कर रहा था। मेरी मर्ज़ी का होना ज़रूरी है क्या? हरम का चेहरा अभी भी बहराम ने थामा हुआ था। अब की बार उसने नज़र उठाकर बहराम को देखते हुए पूछा, ऑफ़ कोर्स ज़रूरी है। मैं ज़रूर ज़बरदस्ती का या फिर इस मामले में तुम अपनी मर्ज़ी चलाने का कायल नहीं। बहरहाम हरम के चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़े संजीदगी से पूछने लगा, तो फिर ठीक है। हरम ने बोलते हुए जल्दी से अपनी नज़रें वापस झुका ली तो बहराम के लबों पे जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। क्या ठीक है? क्या मतलब इस बात का? बहराम संजीदगी से हरम से पूछने लगा, मतलब जैसा आप चाह रहे हैं तो ठीक है फिर। हरम अपने चेहरे से बहराम के हाथ हटाती हुई बोली, मतलब मेरे चाहने पर तुम एग्री हो? तुम्हारा खुद का अपना दिल नहीं कि तुम अपना रिलेशन स्टार्ट करें? बहराम अपने चेहरे की स्माइल छिपाता हुआ उसकी हालत से लुत्फ़अंदाज़ होता हुआ बोला, वो मतलब नहीं था मेरा। बहराम आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? क्या अपना मुँह फाड़ कर बोल दूँ कि मैं जानती हूँ आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं। हरम शर्माने की बजाय नाराज़ होकर किचन से जाने लगे, तब बहराम ने उसे बाजू से खींचकर दोबारा अपने हिसार में ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ तंग नहीं कर रहा, अपने बेडरूम में चलते हैं, लेकिन मेरे वहाँ तंग करने पर तुम इस तरह से नाराज़ नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहराम की प्यार भरी धमकी पर वो शर्माने के साथ-साथ हँस दी। एग्री, हरम की मर्ज़ी सुनकर बहराम ने उसे अपने दोनों बाजुओं में उठा लिया। क्या हर शौहर को इसी तरह अपनी बीवी को उठाकर बेडरूम में ले जाना ज़रूरी होता है? इस बहराम के इस अमल पर शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन उससे ये जानना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वो अक्सर फ़िल्मों में ऐसे सीन देखती आई थी और शादी की रस्मों में भी अक्सर दूल्हा अपनी दुल्हन को ऐसे उठाकर कमरे में लेकर जाते थे। मैं ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता मगर रोमांटिक ज़रूर होता है। मैंने तुम्हें इसलिए उठा लिया तुम्हारा वेट ज़्यादा नहीं है। अगर तुम अच्छी सेहतमंद लड़की होती तो मैं ये रिस्क ज़रा सोच समझ के बहराम के लेता। बहराम की शरारत भरे अंदाज में हरम ने उसे घूर कर देखा। बहराम मुस्कुराता हुआ उसे बाजू में उठाया बेडरूम में ले जाने लगा। बेडरूम में लाकर हरम को बेड पे बिठाते हुए बहराम का शरारत भरा मूड अब बिल्कुल सीरियस हो चुका था। वो लाइट बंद करता हुआ नाइट बल्ब ऑन करके हरम के पास आता हरम नर्वस होने लगी। नर्वस नाइट क्लब की मध्यम रोशनी में वो हरम की तासुरात देखता हुआ सवालिया अंदाज में से पूछने लगा, नहीं बिल्कुल हाँ नहीं बस थोड़ी-थोड़ी। वो थोड़ी ही नहीं बहुत नर्वस थी। उसे समझ ही नहीं आता बहराम को क्या बोले। हरम की कैफियत समझते हुए बहराम ने उसका हाथ थाम कर अपने होठों पे लगा लिया, जिस पर हरम के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। अपने ज़हन में ये बात रखो कि हम दोनों एक मुक़द्दस रिश्ते में बंधे हुए हैं। जब हम दोनों एक-दूसरे के करीब आएँगे तभी हमारा रिश्ता मज़बूत होगा। ये एक नेचुरल सा ताल्लुक है जो शादी के बाद हर शौहर और बीवी के दरमियान पैदा होता है। इसी से शौहर और बीवी में एक-दूसरे के लिए मोहब्बत, एहसास, एतमाद का रिश्ता पैदा होता है। यूँ समझ लो यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। हरम तो क्या तुम चाहती हो मेरे और तुम्हारे दरमियान प्यार, मोहब्बत, एतमाद और एहसास का रिश्ता मज़बूत हो जाए? बहराम बेड पर हरम के करीब बैठा और उसका हाथ थामे हरम से पूछने लगा तो हरम ने बहराम की बातों इकरार में सर हिलाया। वो दिल से अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता मज़बूत करके उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी। हरम की रज़ामंदी देकर बहराम ने उसके गले में मौजूद दुपट्टा उतार के उसे साइड पर रखा। बहराम अपनी शर्ट उतारने लगा तो हरम ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसने अपने बेड पे लेटना चाहा तो बहराम ने उसे बाजू से पकड़ के अपने करीब कर लिया। बहराम हरम को अपने हिसार में लिए अपने तशनाए लब उसके होठों पर रख अपनी प्यास बुझाने लगा। बहराम के दोनों हाथों उसके शानों पे ढके हुए थे। शानों से अपनी शर्ट नीचे सरकती हुई महसूस करके हरम की धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगी। बहराम के होठों का लम्स अपनी गर्दन और शानों पे महसूस करके वो अपनी आँखें ज़ोर में बंद कर चुकी थी। बहराम के हाथ उसकी कमर को छूते हुए उसे शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। हर चीज़ से गाफ़िल होकर सारे शर्म के पर्दे गिराता हुआ और अपने दरमियान एक-एक करके सारे फसले समेटने लगा। हरम की गुर्बत का नशा उस पे ऐसे तारी होने लगा वो अपने आप भुला उसके वजूद में खुद को बुरी तरह गुम कर चुका था। हरम बेड पे लेटी हुई आँखें बंद करके बहराम को पुकारने लगी। क्या नहीं था उसकी दस्तक में मोहब्बत, चाहत, अपनेपन का एहसास। इस कदर शिद्दत के हरम बेचैन होने लगी। अपनी थाइस पर बहराम की उँगलियों का लम्स और अपने पेट पर बहराम के होठों की नरमाश को महसूस करके उसकी बढ़ती हुई चिर्रातों और शिद्दतों पर ताब न लाना हरम के लिए मुश्किल होने लगा। हरम की जान निकलने के दर पे थी जब वो मुकम्मल तौर पे उस पे झुकता हुआ पूरी तरह काबिज़ होने लगा। कलाइयों से हरम के दोनों हाथ पकड़े और उसके दिल के एक मुकाम पर अपने कंधे गूंदे हुए नाम पर होठ रखता हुआ उसकी हवासों पे काबिज़ होने लगा।